loan, NPAs, Recovery Surfacy Act, the IBC Act, and post that also discussed about the IBBI, Bankruptcy Board of India. Yes, the fugitive economic offender we have discussed. Post that Prevention of Money Laundering Act. What is money laundering? Then Enforcement Directorate about ED. Two acts are there. That is Foreign Exchange Management Act 1999 and the Prevention of Money Laundering Act 2002. There are two acts under which the Enforcement Directorate used to work. Okay. Then Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation discussed one case of the UTI in which the government did the bailout because it was a government-owned mutual fund company. Today, this PPT will be uploaded into the drive, so you can able to do the revision and all those things. So bailout and bail-in, there were two two things. Bailout means from outside government or any authority trying to help the institution or help the company so that कि वो कंपनी जो है मतलब इंसॉल्वेंट ना हो या फिर डिसफंक्शनल ना हो, तो उसके डेट को क्लियर करने की प्रोसेस जो होती है दैट इज द बेल आउट पैकेज. ओके. बेल इन का मतलब होता है कि जब कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज करके या कंपनी के न्यू शेयर्स इशू करके या कुछ अंदर के मैनेजमेंट को चेंज करके या अंदर से कुछ करते हो, इंटरनल जब करते हो तो बेल इन होता है. और बेल आउट मतलब आउटसाइड से जब कोई आप रिसोर्सेज यूज करके कंपनी को आप उस सिचुएशन से क्राइसिस से बाहर निकालते हो, दैट इज कॉल्ड बेल आउट. तो बेल आउट उन्हीं कंपनीज का किया जाता है नॉर्मली जो कंपनीज इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है. सारी कंपनीज का बेल आउट नहीं किया जाता. और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट प्रीफर करेगी उसको बेल आउट करना. और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आरबीआई भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड देन द बैड बैंक वी आर डिस्कस्ड. National Asset Reconstruction Company NARCL along with India Debt Resolution Company, these two companies will take out first set of bad loans. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि ये जो NARCL और IDRCL है ये दोनों क्या करेगी, जो बैड लोन्स हैं उन लोन्स को ले लेगी और अपने तरीके से क्या करेगी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें से कुछ रिकवरी करने की कोशिश करेगी. ये जो NARCL और IDRCL है ये दोनों जो कंपनीज हैं उनमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनकी मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप है. मतलब ये इंस्टीट्यूशन बनाए ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने है ताकि पब्लिक सेक्टर्स का जो के साथ जो एनपीए का इशू है और उनकी जो बैलेंस शीट बहुत वीक हो गई है उसको हेल्दी बनाने की कोशिश की जा सके. ठीक है. आज प्रोबेबली हम बैंकिंग सेक्टर को खत्म कर देंगे. आज हम सिक्योरिटी मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये करीब करीब एंड ही चल रहा है बैंकिंग का. PCA framework designed by the Vimal Jalan, ex-RBI governor in 2002, and PCA framework is nothing but when banks doesn't perform well and the NPA of bank increased beyond a limit, then RBI have power to take that bank or take that financial institution into the domain of or under the framework of the PCA, that is prompt corrective action. So what happened in the PCA framework? Like central bank or Reserve Bank of India put moratorium on that and try to help the bank so that help bank can come into the healthy condition. तो वो healthy condition आने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि उसके एनपीए को कम करना है. और एनपीए कम करने के लिए आपने एक इंस्टीट्यूट बना दिया बैड बैंक, तो आप कहीं ना कहीं उस बैड बैंक की हेल्प से जिस बैंक में एनपीए क्राइसिस चल रहा है उस बैंक को की बैलेंस शीट को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हो. ठीक है. वो उसको एनपीएस जो है वो बैड बैंक को देगा. देन दिस वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन. Basel norms we were discussing. Basel norms are particularly have little importance in the banking sector. Basel norms. Basel is a place in the Switzerland
Okay, and Basel norms are for the international banking regulation. International banking regulation means uh, every country have the banking system. So what we need, that we need a unity of direction. Unity of direction means for a better management, for efficient management of the banking system. We need good SOPs, the standard operating procedures, which every country should use, so that there should be a cohesion between countries when they come into the international domain. Okay, if there is a banking system in one country and banking system in some other country, both will use the different norms and different kind of strategies and all that. In that case, it would be very difficult for the banking to coordinate in the international sphere. So in that case, it would not be not a good scenario, not a win-win situation. So for that, for the betterment, for the standardization, there is a committee that is called the Basel Committee on the Banking Supervision. What they did, their main purpose is to make the standards of the international banking, or to regulate them, to make rules and regulations, so that the banking system of any country or the international banking system can have a healthy output. So Basel norms or Basel Accords are the international banking regulation issued by the Basel Committee on Banking Supervision. This is the committee, Basel Committee on Banking Supervision, which releases the Basel norms. The Basel norms is an effort to coordinate banking regulations across the globe with the goal of strengthening the international banking system. The goal is to strengthen the international banking system. So there is always a communication between all the central banks of the countries. They are in continuous in touch, and there's so many times their delegates meet each other. There is a technology transfer. There is a good practices used to be transferred between the central banks of the countries. Uh, there are formal meetings, there are informal meetings, and also there is a Basel Committee on Banking Supervision. That is a most formal, and in which the best practices of the banking are always discussed, the technical know-how, the management practices, and they try to inculcate all those things among all the member countries which are part of this. And not only to with these countries which are part of it, those countries which are not part can also reap the benefit of the management practices which the Basel Committee on Banking Supervision is trying to inculcate among the its members. तो जो नॉन मेंबर्स हैं उनको भी फायदा मिल सकता है. कैसे? बिकॉज सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रहती है, सो दे कैन अडॉप्ट द प्रैक्टिस, they can adopt the standard practice which Basel Committee on Banking Supervision is coming up with. So that's the thing. Now, it is the set of the agreement by the Basel Committee on Banking Supervision which focuses on risk to banks and the financial system. Okay. Basel Committee on Banking Supervision is established by central bank governors of the Group of 10 countries in 1974. So, Group of 10 means G10 were the countries. Oh, at that time, they were very powerful countries. Those 10 countries, central bank's governor. Definitely, it is banking is all about that. There would always be a central bank in the country. In case of India, that is RBI. In case of USA, that is Federal Bank. So every country have their central bank, like which like India have the RBI. So the central bank governor of group of 10 countries in 1974 established this banking committee on banking, Basel Committee on Banking Supervision. They established it in 1974. The committee expanded its membership 2009 and then again in 2014. Two instances were there, 2009 and 2014, in which the banking that committee expanded its membership, means number of member and proliferated. BCBS, that is Banking Basel Committee on Banking Supervision, now has 45 members. India is one of the members from 28 jurisdictions, consisting of central banks and authorities with responsibility of banking regulation. The main purpose is the banking regulation. It provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. Definitely, there is a forum. People will come, delegates will come, the economics expert will come and discuss uh, like what can be done, what can we do to for the betterment of the banking system and all that. So that's the forum which is provided by this Basel Committee. Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking supervision worldwide. So what they want to do, just try to understand it. That's okay, the banking and banking supervision and all these things, but they want to understand, like there are so many countries
Every country is facing some similar issues. Some issues are different. Some issues are very diverse. Okay, like Asian countries are facing some kind of issue, and some African countries are facing a different kind of issue. Developed world is facing some different kind of issues. हर कंट्रीज के जो इश्यूज हैं बैंकिंग सिस्टम के, वो कुछ तो एक जैसे हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल अलग है. तो सारी कंट्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई एक आगे आउटपुट निकालते हैं, एक कोई आगे एक वे फॉरवर्ड निकालते हैं, जिससे बैंकिंग पूरे सिस्टम को क्या बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है, वो उसके अंदर के जो बैंक्स उसके अंडर काम कर रहे हैं उन सबका सुपरविजन करता है. फॉर एग्जांपल इंडिया, in India, what RBI do? RBI is have the regulatory power. So RBI regulate all the banks जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो इंडियन के फाइनेंशियल सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनका रेगुलेटर RBI है. उसके पास सुपरवाइजरी पावर भी है, which we have discussed. पावर्स ऑफ RBI हमने डिस्कस किया. पावर में सुपरवाइज करता है कि बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं. अगर बैंक कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो RBI के पास पावर भी है कि वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है. क्वालिटेटिव टूल्स हमने देखे थे, मॉरल सुइजन है, फिर मॉरल सुइजन से काम नहीं हो रहा तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है कि भैया आप सही से नहीं कर रहे तो अब आपके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मोराटोरियम, ये सारी चीजें की जा सकती है. तो वर्ल्ड वाइड जितनी सारी बेटर प्रैक्टिसेस है, उन सारी प्रैक्टिसेस को एक कंसोलिडेट करके बेहतर प्रैक्टिसेस और इम्प्रूव करने का काम ये इस फॉरम में किया जाता है. तो वही वाली बात है. बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, दिस वी हैव डिस्कस्ड. इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, BIS का हेडक्वार्टर है, which fosters cooperation among central bank with the common goal of financial stability and common standard banking regulation. पहले बताया कि आपको SOP बनाना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, ताकि क्या हो, बैंकिंग का काम सारा आसानी से हो पाए. बेसल कमेटी हैज इशूड 3 सेट ऑफ रेगुलेशन व्हिच आर नोन एज बेसल 1 2 3. ठीक है. बेसल नॉर्म्स क्या है, बैंकिंग सुपरविजन के लिए है, बैंकिंग रेगुलेशन के लिए है, बैंकिंग को बेटर बनाने के लिए है. ठीक है. 3 रेगुलेशन अभी तक रिलीज हुए, बेसल 1 2 एंड 3. बेसल 1 2 और 3 में ये देखो, उसके पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा. उसके पहले अपन पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले हम उनको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. तो जो टर्म्स हमको समझने हैं वो क्या है. पहला है प्रोविजनिंग एंड कवरेज. प्रोविजनिंग एंड कवरेज. प्रोविजनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि बैंक्स जब लेंडिंग करते हैं तो उनको अपने पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखना होता है, ताकि अगर वो लैंड किया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में वो बैंक उस प्रोविजनिंग वाले पैसे को क्या करेगा, यूज करेगा. आप याद करो, ये देखिए, अगर NPA वाली चीज को याद करेंगे तो हमको याद आ जाएगा कि प्रोविजनिंग हमने वहां पे देखा था. तो प्रोविजनिंग क्या होता है, ये देखिए, प्रोविजनिंग लिखा हुआ है NPA वाले में. प्रोविजनिंग क्या होती है, एज पर RBI नॉर्म्स बैंक्स मस्ट सेट असाइड फंड्स टू कवर लॉसेस अगेंस्ट देयर NPA. ठीक है. NPA को कवर करने के लिए उनको थोड़ा सा फंड अलग से रखना पड़ता है. सच प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स डिक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक. डेफिनेटली बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाता अगर उसका पैसा नहीं डूबता. तो जो पैसा डूब रहा है उसको आप प्रोविजनिंग से क्या करोगे, फुलफिल करोगे, तो कहीं ना कहीं बैंक का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला भी देखा था हमने, दैट इज ग्रॉस NPA माइनस प्रोविजनिंग इक्वल्स टू नेट NPA. तो जो ग्रॉस NPA मतलब ओवरऑल जितना भी NPA हो रहा है उसमें से आपने प्रोविजनिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी रखा है प्रोविजनिंग को, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द नेट NPA. वैसा नेट NPA ये बनेगा. तो प्रोविजनिंग ये होता है. तो provisioning is the term which you need to understand in order to understand the Basel norms. The first thing is the provisioning and the coverage. Provisioning and the coverage. So every bank has to prepare for making a loss on its loans. मतलब हर बैंक को रेडी रहना है, बिकॉज लॉसेस तो होने वाले हैं. जो लोन आप दोगे उसमें से कहीं ना कहीं पे NPA तो बनने वाला है. टू ऑफसेट दिस क्रेडिट रिस्क, टू ऑफसेट मतलब इस चीज को ऑफसेट करने के लिए, उस चीज को दूर रखने के लिए, banks estimates the expected future loss on the loan and books a corresponding provision. मतलब बैंक जब lending कर रहे हैं तो वो ऑटो उस समय ही क्या कर लेता है,
एस्टिमेट कर लेता है कि इतना फ्यूचर लॉस तो मेरे को होने वाला है, और ये सबको करना पड़ता है बिकॉज उनको पता है कि जितना लोन दिया है उसमें से कई सारा लोन जो है वो डिफॉल्ट होगा, और होता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि होता ही है, इसीलिए प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट ही है। तो प्रोविजनिंग वही एक बैंक्स एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस ऑन द लोन एंड बुक्स अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजनिंग रख लिया उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग। Booking a provision means bank use their capital to absorb losses. Capital to absorb losses. Now you need to understand here. Like ये जो लाइन है इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। हर बैंक का अपना खुद का क्या होता है, कैपिटल का एक बेस होता है, कैपिटल बेस। कैपिटल बेस कैसे होता है कि बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी, बैंक जो है वो कुछ नहीं है, एक कंपनी है। बैंक को एक कंपनी की तरह कंसिडर करो। एक कंपनी को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। वो जो पैसा चाहिए वो पैसा किसी कोई भी दे सकता है। लाइक अगर 50 लाख रुपए आपके पास अभी है और आप चाहते हो कि 1 करोड़ की कंपनी स्टार्ट करनी है, तो 50 लाख रुपए आपके खुद के पास है, 50 लाख रुपए आपने मार्केट से उठाए हैं, वो किसी भी फॉर्म में आप उठा सकते हो। बट आपने 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए आपने मान लो शेयर्स की फॉर्म में उठाए हैं, कि आपने 50 लाख रुपए के आपकी कंपनी के नाम पे शेयर्स निकाल दिए, 1-1 लाख का एक शेयर निकाल दिया, और लोगों ने उन शेयर को क्या किया, खरीदा। 50 लोगों ने खरीदा, 50 लाख रुपए आपको मिल गए, आपने उनको क्या कर दिया, शेयर दे दिया। इसका मतलब वो 50 लोग जो हैं वो इस कंपनी के क्या हो गए, पार्ट हो गए, इस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। वैसे ही तो ये जो 100 करोड़, ये जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बना है, ये 1 करोड़ रुपए जो है ये उस पूरी कंपनी का क्या है, टोटल कैपिटल है। इसको कहते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मतलब वो बीज है, वो कैपिटल है जिससे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सीड कैपिटल। ये जो कैपिटल है, अब कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी वैसे वैसे ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का क्या मिलेगा, शेयर मिलता रहेगा। और ये कब मिलेगा, पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट और सब काटने के बाद प्रॉफिट आता है। ठीक है, जिससे कोई कंपनी काम करती है, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया, कंपनी ने फिर अपनी ओवरऑल इनकम, कंपनी की इनकम आपने देख लिया कि कंपनी की इनकम जो है मान लो 2 करोड़ रुपए की कंपनी में इनकम हुई, 2 करोड़ रुपए की इनकम है टोटल। उस इनकम में से उन्होंने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दी, रॉ मटेरियल भी खरीदा, ये सब निकालने के बाद कंपनी को 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2 करोड़ रुपए की इनकम हुई और सारा अपना इंटरनल खर्चा निकालने के बाद 1 करोड़ रुपए कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये 1 करोड़ रुपया जो है ना, वो शेयर होल्डर जो होंगे उन सारे शेयर होल्डर्स को क्या करेगा, मिलेगा अपने शेयर्स के हिसाब से। जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा। मतलब पहले आप कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे पूरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलने के बाद फाइनल लास्ट में जो बचता है दैट इज द प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से फिर क्या होती है, शेयर्स, जिस जिसके शेयर उसको शेयर होल्डिंग मिलती है। अभी हम शेयर मार्केट पढ़ने वाले हैं, उसको पता चलेगा। तो बैंक भी एक तरीका क्या होता है, ऐसी कंपनी होता है। बैंक के भी क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका मतलब उसका मेजोरिटी ऑफ जो शेयर होल्डर है वो कौन है, गवर्नमेंट है। अब एसबीआई है, एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका मतलब मोर देन 50% शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बाकी की जो शेयर होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ और लोगों की है। ठीक है, तो उनको जब भी एसबीआई, अब एसबीआई प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शनिंग पे। फंक्शनिंग, बैंक कैसे फंक्शनिंग करेगा, जो पैसा कॉमन मैन से लेगा वो पैसा आगे देगा, जो पैसा आगे देगा उस पर लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगी, जो पैसा लोगों से लिया उनको इंटरेस्ट रेट कम देगा। मैं कॉमन मैन हूँ, मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, मेरे को 2 से 3-4% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, पर बैंक ने वही 100 रुपए आगे किसी को लोन दे दिए, उस लोन पे बैंक कम से कम 10-12% क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। और यही जो डिफरेंस है, जो स्प्रेड होता है बैंक का, वही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट से पहले क्या करेगा बैंक, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, अपने बिल्डिंग का किराया चुकाएगा, सारे सारे ऑपरेशनल कॉस्ट पहले निकालेगा। उस ऑपरेशनल कॉस्ट के निकलने के बाद जो प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट में जो शेयर होल्डर है उन सारे शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, अपना अपना डिविडेंड मिलेगा, अपना अपना लाभांश मिलेगा, उस प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इन केस इफ देयर इज अ प्रोविजनिंग, अब आपने प्रोविजनिंग रखी है, प्रोविजनिंग रखी है कब, किस लिए, कि आपका क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग रखी है मतलब कहीं ना कहीं आपका एनपीए जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। उस एनपीए को रिकवर करने के लिए आपने उस प्रोविजनिंग को क्या किया है, यूज किया है। तो जब तक आपके प्रॉफिट के हिस्से का चल रहा है प्रोविजनिंग तब तक ठीक है, बट अगर बियॉन्ड जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल पे भी क्या आएगी, आ जाएगी। तो कैपिटल, ये यही बात कह रहा है। अब प्रोविजन मींस बैंक यूज देयर कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस, कि अब लॉसेस हो रहा है तो बैंक को कहीं ना कहीं अपना कैपिटल क्या करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है। अब ये कैपिटल, एक तो वो कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट में हुआ है, एक कैपिटल जो आपने क्या करके रखा है, बना के रखा है।
कोई फिक्स एसेट आपने क्रिएट करके रखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाले, तो उसमें जो कैपिटल है उस कैपिटल को आपको क्या करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यूज करना पड़ रहा है। हो सकता है कई जगह आपने कोई यूनिट बना रखी है, वो यूनिट आपने किसी एक फंक्शन के लिए बनाई, बट आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो आपने उस यूनिट को क्योंकि क्रिएट किया था पहले, तो वो आपका कैपिटल था, वो आपका एक एसेट था, बट क्योंकि काम नहीं आ रहा है, वो काम आ रहा है बट कहीं ना कहीं लॉसेज हो रहे हैं आपको, तो आपको उसको क्या करना पड़ रहा है, रिफंड करना पड़ रहा है, उसको बेचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना कैपिटल क्या करना पड़ रहा है, उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको अपना कैपिटल क्या करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है। तो यही लाइन वही कह रही है, द प्रोविजन मींस द बैंक यूज देयर कैपिटल टू एब्जॉर्ब द लॉसेस बाय बुकिंग सर ये वाला चीज और एक बार बताएंगे प्लीज, ये कैपिटल। हाँ ठीक है, देखो बिजनेस कैसे रन करता है वो तो समझ आ गया ना, कि बिजनेस में जब प्रॉफिट हाँ होगा, सर। सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद जो बचेगा उसमें से शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोविजनिंग एक अलग से रखनी है, एक वो लिमिट गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बता रखी है कि आपको इतना क्या करना है, प्रोविजनिंग रखना ही है, उतना प्रोविजनिंग रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या बोलते हैं, जो लॉसेज होगा वो कवर हो पाएगा। एनपीए लॉसेज भी तो है, तो एनपीए जब बढ़ेगा और एनपीए अगर ज्यादा बढ़ गया है, तो आप उस प्रोविजनिंग को यूज करके क्या करोगे, सेटल करने की कोशिश करोगे। बट प्रोविजनिंग कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को क्या करेगी, हैम्पर करेगी ना, आपके प्रॉफिट को क्या करेगी, हैम्पर करेगी। क्यों करेगी हैम्पर, बिकॉज अगर प्रोविजनिंग, अगर वो प्रोविजनिंग में आप नहीं रखते पहला, तो उसको क्या करते हैं, लैंड करते हैं। अगर आप प्रोविजनिंग नहीं रखते, जैसे सीआरआर रखते हैं, एसएलआर रखते हैं, 100 रुपए आए बैंक में, 4% सीआरआर रखवा दिया, 18% उसके बाद क्या रखवा दिया, एसएलआर रखवा दिया, 18 और 4 करीब करीब 22%। वैसे वो 4 निकलने के बाद नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे 18 या 19% आता है, जो भी एसएलआर है। बट स्टिल अगर आप एक अप्रोक्सीमेट बनाओगे तो दैट इज नथिंग बट 22% सीआरआर एसएलआर निकल जाता है। ठीक है, मतलब 78% ही बचा जो आगे लैंडिंग कर पाओगे। तो क्योंकि ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है और आपसे रिजर्व रखवा दिया, उसके बाद ही आप क्या कर पा रहे हो, आगे लोन दे पा रहे हो। सिमिलरली उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रोविजनिंग भी रखो, मतलब ऑलरेडी 22% तो रखवा दिया, फिर कह रहे हैं कि आप प्रोविजनिंग भी रखो ताकि आप क्या कर पाओ, एनपीए के टाइम पे उस प्रोविजनिंग से थोड़ा आपको रिलीफ मिल पाएगा। तो ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा बैंक का रखवा दिया गया, ठीक है, उसके बाद और प्रोविजनिंग भी रखवा दी गई, तो ये बैंक के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उस प्रोविजनिंग को अगर प्रोविजनिंग नहीं रखते तो उसको क्या करता हूँ, लैंड करता तो उसके लिए एसेट बनता, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कमा के देता, बट वो कमा के नहीं दे रहे। तो प्रोविजनिंग रखना बैंक के लिए कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, बट क्योंकि एनपीए बढ़ जाता है बैंक, और बढ़ता ही है, हिस्टोरिकल है ये, एक एक जनरल क्या बोलते हैं, एक नॉर्म है एक तरीके का, कि आपको एनपीए बनेगा ही आपने किसी ना किसी तरीके से। तो क्योंकि एनपीए बनेगा तो प्रोविजनिंग रहेगी, तो वो आपकी वहां पे क्या करेगी, हेल्प करेगी। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि प्रोविजनिंग अगर आपने रखी है, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर रही है, डेफिनेटली हर्ट कर रही है। बिकॉज अगर प्रोविजनिंग नहीं रखते, ठीक है, तो क्या होता, उसको आप लैंड कर पाते, पहली बात। दूसरी बात कि आपका प्रॉफिट है उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है ना। पहले आप ज्यादा पैसा कमा रहे थे, अब प्रोविजनिंग में पैसा चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनपीए के साथ सेटल हो रहा है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो गई। और कई बार ये होता है कि आपको एनपीए की लॉसेस कवर करने के लिए प्रोविजनिंग तो है ही, पर प्रोविजनिंग के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने कैपिटल को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कैपिटल सेक्रीफाइस दो तरीके से, एक तो जो आप कैपिटल शेयर होल्डर है वो अलग बात है, दूसरी चीज है कि आपने कैपिटल क्रिएशन किया है, जैसे एक यूनिट आपने बनाई, फॉर एग्जांपल बैंक ने एक एटीएम खोल रखा है, ठीक है, एक एटीएम खोल रखा है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट कुछ तो आ रही होगी, ठीक है। अब क्योंकि बैंक लॉस में चल रहा है या बैंक को प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो बैंक क्या करेगा, हो सकता है कि लॉस को कवर करने के लिए वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बैंक यूनिट को, उस पर्टिकुलर एटीएम यूनिट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, बिकॉज उसको मैनेज करने में क्या रहेगा, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वो उस यूनिट को क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया। उस यूनिट को बंद किया, उसको सेल आउट किया, जो भी किया, उससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिला और उसने उसको क्या करना है, कवर अप करने की कोशिश की। तो जो एसेट आप पहले से बना चुके हो, जो आपका कैपिटल है, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इन केस देयर इज अ प्रोविजनिंग। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो जो एसेट आप बना चुके हो, उस एसेट को आपको क्या करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है उस केस में जब आपके एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो प्रोविजन मींस बैंक यूज देयर कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस, उनको लॉसेस एब्जॉर्ब करने के लिए अपने कैपिटल को क्या करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई समटाइम्स बैंक आल्सो नीड्स द रिकैपिटलाइजेशन, बिकॉज
कहीं ना कहीं ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी के लिए बैंक को एक मिनिमम रिसोर्सेज एक लिमिट तक तो जरूरत पड़ती है। अब ये सब एनपीए वगैरह से और इनइफेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से अगर कैपिटल को वो सेक्रीफाइस करेगा या अपने एसेट्स को सेक्रीफाइस करेगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे कहीं ना कहीं वापस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ज्यादा एसेट्स हैं तो मैनेज कर रहा है, कम एसेट्स हैं, कैपिटल कम है, तो उसके लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बैंक को कई बार रिकैपिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, मतलब उनका कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उनको रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। बेसल नॉर्म्स में यही पढ़ेंगे कि बैंकों को कितना कैपिटल चाहिए और कितना कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज प्रोविजनिंग एंड कवरेज। बताइए, आया समझ में? Yes. Yes. By booking a provision, the bank takes a loss and hence reduces its capital by the amount of money that it will not able to collect from the client। वो सिंपल सी बात है भाई साहब, जो पैसा उसको वापस नहीं मिल पा रहा है वही तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना पड़ेगा अपने कैपिटल से। कैपिटल से मैनेज क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज वो वापस नहीं आ रहा है वो पैसा, कैपिटल से निकालना पड़ रहा है। ठीक है, या एक सिंपल सी बात ऐसा समझो ना कि घर के अंदर सब कुछ सामान रखा हुआ है, सोफा रखा है, टीवी रखी है, सब रखी है। अब क्योंकि बिजनेस में हो गया लॉस, ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बट बिजनेस बंद नहीं कर सकते, बिजनेस चलाना है, क्योंकि बिजनेस में थोड़ा लॉस हुआ ना, बिजनेस को बंद क्यों करें, बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो। तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस का जो टेम्पररी लॉस है, अभी जो लॉस है, उस लॉस को चुकाने के लिए, क्योंकि आपसे क्या मतलब जो जिससे आपने पैसा लिया वो पैसा मांग रहा है, या आपकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपने क्या किया, घर के सोफे को क्या कर दिया, बेच दिया, उससे जो पैसा आया उससे आपने अपने लॉसेस कवर किए। डिड यू गेट माय पॉइंट? मींस यू यूज योर कैपिटल टू एब्जॉर्ब योर लॉसेस। आपका जो कैपिटल एसेट था जो आपके पास पहले से रखा हुआ था, उसको आपने यूज करके क्या किया, अपने लॉसेस को कवर किया। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आपका एनपीए इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि आपकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा बहुत रहेगा तो आप सस्टेन कर जाओगे, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आप कम कर दोगे, स्प्रेड जितना है उसमें थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो मैनेज हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा है तो मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज बैंक की प्रॉफिट जो स्प्रेड है बैंक का, उसमें प्रॉफिट तो है ही, प्लस प्रॉफिट से पहले उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है। एम्प्लॉयज को सैलरी भी तो देनी है, बैंक में एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी, पूरा बैंकिंग ऑपरेशन संभालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, एसी का बिल भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस कराना पड़ेगा एटीएम्स का, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है। उन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बाद जो बचेगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो पॉसिबिलिटी ये भी आ जाती है कि अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट कभी कभी क्या हो जाता है, बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाता है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अपने कैपिटल जो आपने क्रिएट करके रखा है उसको बेच के, जैसे अभी हुआ ना, आपकी ऑपरेटिंग, आपने फैक्ट्री चलानी है, आप फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री चलाने में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई कि आपकी जो रिटर्न आ रहा है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें पैसा बच ही नहीं रहा है। ठीक है, प्रॉफिट तो जीरो हो रहा है, हो सकता है कि प्रॉफिट जीरो हो रहा है और आपको लॉस हो जाए बिकॉज आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाए, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कई सारा पैसा ऐसा है जो वापस नहीं आ रहा है, एनपीए इतना बढ़ गया कि वापस ही नहीं आ रहा है। तो जितना आ रहा है वापस, उसमें आप वापस डिपॉजिट तो दे रहे हो, जो पैसा आप बीच में इंटरेस्ट वाला अर्न कर रहे हो, उस इंटरेस्ट वाली अर्निंग से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कवर नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जो इंटरेस्ट अर्निंग है, जो स्प्रेड से इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, उस इंटरेस्ट अर्निंग का करोगे क्या आप? वो क्या है, ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से क्या करोगे आप, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो पैसा है एनपीए का बहुत ज्यादा है, वापस ही नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। इंटरेस्ट कम होगा तो हो सकता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट के बराबर इंटरेस्ट आ रहा हो, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट तो आप देने से रहे। कई बार ये होगा कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही कवर नहीं हो पा रही, तो ऐसे कवर नहीं हो पाएगी तो आप क्या करोगे, या तो बैंक्स को बंद कर दोगे, पर बंद करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू यूज योर एग्जिस्टिंग कैपिटल, कि भाई साहब ठीक है मेरे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को क्या करते हैं, बेच देंगे, तो एक बार एम्प्लॉयज को क्या कर देंगे, सैलरी दे देंगे, ताकि अपना ऑपरेशन सस्टेनेबल हो पाएगा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट यू नीड टू यूज योर कैपिटल टू एब्जॉर्ब योर लॉसेस। गॉट इट? अभी क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. The portion of non-performing loans covered by provision is called bank's NPL coverage. Prelims question है, NPL मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग लोन भी कहते हैं, एक ही बात है। तो आप ये जो प्रोविजनिंग से जितना आप एनपीए कवर करते हो ना,
उसको कहते हैं आपका एनपीएल कवरेज, नॉन परफॉर्मिंग लोन का कवरेज। ठीक है, दैट्स द कवरेज। एक ही बात है, प्रोविजनिंग एंड कवरेज एक ही बात है। प्रोविजनिंग जितना आप रख रहे हो दैट विल बिकम द एनपीएल कवरेज। एनपीएल ये क्लियर हो गया, प्रोविजनिंग एंड कवरेज। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल नॉर्म्स की टेक्निकलिटी में ज्यादा नहीं जाना है, मेंस में तो पूछेगा नहीं कभी। ठीक है, कि बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, टेक्निकलिटी नहीं पूछेगा मेंस में, तो नियर टू इम्पॉसिबल क्वेश्चन पूछना है इससे। बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे आ सकता है, और प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा टेक्निकल और डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही पूछेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीपली मत घुसना, इसका बस एक ओवरव्यू लेना है अपने को, बहुत ज्यादा डीप नहीं घुसना है, नहीं पूछता बहुत ज्यादा डीप। जनरलिस्टिक एग्जाम है यूपीएससी, स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है सीआर, दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि मेजर ऑफ हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर क्या होता है, बैंक ने लोन दिया, बैंक ने क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब आप देखोगे कि बैंक एक कैटेगरी का लोन नहीं देता, बैंक बहुत सारी कैटेगरी का लोन देता है। एजुकेशन लोन भी दे रहा है, होम लोन भी दे रहा है, पर्सनल लोन भी दे रहा है, कार लोन भी दे रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे तरीके के बैंक क्या देता है, लोन देते हैं। सारे लोन्स पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होती है उस लोन के साथ। जैसे आप देखोगे कि कुछ लोन ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा सर्टेनिटी है कि वो लोन वापस आएगा। ठीक है, और कुछ लोन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा सर्टेनिटी कि वो वापस, उसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या रहती है, कम। ये प्राइम सब प्राइम वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा, बट इनको अपन लोन से एसोसिएट कर रहे हैं, पीपल से नहीं कर रहे। ठीक है, प्राइम सब प्राइम थोड़ा पीपल से एसोसिएट हो जाता है, ये यहाँ हम लोन की कैटेगरी से एसोसिएट कर रहे हैं। तो कुछ कैटेगरी ऑफ लोन्स जो है उनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, कुछ कैटेगरी ऑफ लोन्स ऐसे जिनके आने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो हर लोन की कैटेगरी के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहती है। ठीक है, तो हर लोन की कैटेगरी के साथ, मान लो जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन लोन है, तो एजुकेशन लोन की रिस्क मान लो वो कह रहा है कि 20% इसमें क्या है, रिस्क है। मतलब 100 रुपए दे रहा हूं तो 80 रुपए वापस आ जाएंगे, बट 20 रुपए वापस आने की संभावना थोड़ी कम है। इसका मतलब जो ये एजुकेशन लोन है उसमें 20% रिस्क है, मतलब 20% पैसा वापस आने की संभावना कम है थोड़ी। तो हर कैटेगरी ऑफ लोन के साथ एक परसेंटेज ऑफ रिस्क जो क्या है वो आपने जोड़ दिया है। ठीक है, वो आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया है कि हर कैटेगरी ऑफ लोन का इतना परसेंटेज जो है वो रिस्क रिस्क वाले डोमेन में है। ठीक है, जैसे एजुकेशन में आपने बोल दिया 20% लोन वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आने की संभावना है। वैसे ही आप हाउस लोन में बोल रहे हो कि 10% वापस नहीं आएगा। ठीक है, फिर पर्सनल लोन में बोल रहे हो कि 20-30% वापस नहीं आएगा। तो हर लोन कैटेगरी के साथ आपने कुछ रिस्क परसेंटेज क्या कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है ऑन द बेसिस। ये एकदम हवा में नहीं हो रहा है कि हाँ हवा में करते नहीं, उनके पास प्रॉपर डेटा है, प्रीवियस हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बेस पे उन्होंने क्या किया है, एक प्रिडिक्शन बनाया है, एक फोरकास्टिंग की है काइंड ऑफ। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिस्क वेटेड एसेट बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, मेजर ऑफ हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर का मतलब है कि जितने सारे लोन्स दिए हैं, कैटेगरी 1 लोन, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, सारे लोन्स हैं। होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एक्स लोन हो गया, वाई लोन हो गया, सारे लोन्स हैं। उन सारे लोन्स का एक कुछ कुछ क्या है, परसेंटेज है जो रिस्क वेटेज है उसका, सबका रिस्क वेटेज अलग अलग है। उस रिस्क वेटेज जो है सबका, उस रिस्क वेटेज को क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे। उस रिस्क वेटेज को सबको कैलकुलेट करोगे कि भाई साहब ओवरऑल जो बैंक के टोटल क्रेडिट है, उस टोटल क्रेडिट में इतना इतना जो आएगा वो रिस्क वेटेड है। जैसे 20% एजुकेशन में रिस्क वेटेड जा रहा था, वैसे ही होम लोन में कुछ X% जाएगा, पर्सनल लोन में कोई Y% जाएगा। ये सबका जो रिस्क वेटेड एक्सपोजर है ना, उन सबको आप एक क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जो कैलकुलेट होके आएगा वो बैंक का टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। समझ में आ रहा है, टोटल रिस्क वेटेड एसेट मतलब टोटल बैंक का इतना पैसा जो है ओवरऑल में से वो रिस्क वेटेड है। गॉट इट। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, अगर अलग अलग कैटेगरी से ना लो, कि बैंक ये एक्सपेक्ट एंटिसिपेट कर रहा है कि मैं 100 रुपए अगर दे रहा हूं उसमें से 15 रुपए वापस नहीं आने, ऐसा बैंक सोच रहा है। ठीक है, मान लो डिफरेंट कैटेगरी नहीं है तो ओवरऑल बैंक कह रहा है 15% वापस नहीं आने वाले, तो 15 रुपए जो हो गया वो बैंक का हो गया रिस्क वेटेड एसेट। समझ गए।
तो अभी डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो डिफरेंट कैटेगरी के सब का आप सम अप कर लेते हो, तो दैट विल बिकम द, क्योंकि हर लोन के साथ अलग अलग रिस्क एसोसिएट होती है, सेम रिस्क एसोसिएटेड नहीं होती, अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क होता है, सबका कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल बी द रिस्क वेटेड एसेट। उस रिस्क वेटेड एसेट का क्या करना है, अब देखो, मेजर ऑफ हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज, measure of how much capital a bank has as a percentage of bank's risk weighted credit exposure। ठीक है, मतलब बैंक के पास कितना कैपिटल क्या है, अवेलेबल है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, मतलब बैंक का ओवरऑल कैपिटल जो है वो उस रिस्क वेटेड के कंपैरिजन में कितना है, उसी को आपका क्या कहते हैं, मोर और लेस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR, इसको कैलकुलेट कर रखी। पर ये समझ में आ गया, रिस्क वेटेड जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा करीब करीब, और आपका टोटल एसेट जो टोटल कैपिटल जो आएगा वो आपके न्यूमरेटर में आएगा, इनटू 100 कर दोगे आप। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो मेजर ऑफ हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज, बैंक का ओवरऑल कैपिटल डिवाइडेड बाय बैंक का रिस्क वेटेड एसेट, उनका आप रेशियो ले लोगे, दैट विल बी योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। Purpose is to establish that banks have enough capital on reserve to handle a certain amount of losses। मतलब ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको लेके चलना है कि आप इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखो। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है बैंक का टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है रिस्क वेटेड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड कैपिटल जो है वो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इस रेशियो का एक आइडियल नंबर होगा जो भी बताएंगे कितना होना चाहिए, ठीक है, वो नंबर के हिसाब से आपको चलना है। तो अगर आपका न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, टोटल कैपिटल, और डिनोमिनेटर में आ रहा है रिस्क वेटेड कैपिटल, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज रिस्क वेटेड कैपिटल, वो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिस्क वेटेड कैपिटल आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आपका टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका ओवरऑल जो रेशियो होगा वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो न्यूमिनेटर को क्या माने, ज्यादा माने, और डिनोमिनेटर को कम माने। ये तो समझ में आ गया ना, इसको आगे लेके चलते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो रहा है अभी पूछो, क्योंकि आगे एक दो चीजें और ऐड होने वाली है इसमें। यस सर, इन शॉर्ट और रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, क्या समझ में नहीं आया इसमें, कुछ भी नहीं आया? आया सर, लेकिन रिपीट कर दीजिए एक बार बस। चलो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या कह रहे हैं ना कि एक बैंक है, 100 रुपए उसके पास है, और वो 100 रुपए आगे लोन में देने वाला है। इस 100 रुपए में से वो मान लो कहता है कि मैं 10 रुपए एजुकेशन लोन में दे रहा हूँ, 10 रुपए होम लोन में दे रहा हूँ, 10 रुपए मैं पर्सनल लोन में दे रहा हूँ, 10 रुपए कार लोन में दे रहा हूँ। ऐसे उसने 10-10 रुपए क्या कर दिए, अलग अलग कैटेगरी के लोन्स में बांट दिए। तो 100 रुपए बैंक ने क्या कर दिए, बांट दिए। ये 100 रुपए बैंक के क्या है, एसेट्स है, क्योंकि ये बैंक को वापस मिलेगा और बैंक इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बैंक का क्या है, एसेट है। अब इस एसेट में से ही बैंक के क्या बनेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेंगे जो वापस नहीं आएंगे। तो बैंक जब लोन दे रहा है तो बैंक ये एंटिसिपेट करता है, बैंक ये क्या करता है, एक कैलकुलेशन बिठाता है, हिस्ट्री देख के, सब कुछ देख के, कि हर कैटेगरी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, कि भाई इस कैटेगरी के इतने परसेंट जो पैसे हैं वो वापस नहीं आते, ठीक है। तो मैं उसको पहले से ही क्या करके चलता हूँ, मान के चलता हूँ दिमाग में कि इतना पैसा वापस नहीं आने वाला, उस बेस पे ही मैं प्रोविजनिंग का भी काम करूंगा, ठीक है, ये सोच के चलता हूँ। तो वो कह रहा है कि एजुकेशन लोन में 10% रिस्क है, वैसे ही वो कह रहा है कार लोन में 20% रिस्क है। हर लोन की अलग अलग वो क्या बता देता है, रिस्क बता देता है। तो मान लो एजुकेशन लोन में वो कह रहा है 10% रिस्क है, 10% वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 रुपए में से 10 रुपए उसने दिए एजुकेशन लोन में, उस 10 रुपए का 10% वापस नहीं आएगा, इसका मतलब 1 रुपए वापस नहीं आएगा। तो एजुकेशन लोन का रिस्क वेटेड एसेट कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। वैसे ही सबका कुछ ना कुछ रिस्क वेटेड एसेट आएगा, उन सारे को जोड़ दोगे आप ना, सबका रिस्क वेटेड को, तो वो बैंक का टोटल रिस्क वेटेड एसेट आएगा। मतलब, और मान लो सबको जोड़ने के बाद आपको 15 रुपए मिले, इसका मतलब बैंक पहले से सोच रहा है कि 100 रुपए जो दिया हूं मैं, उसमें से 15 रुपए तो वापस नहीं आने वाले। तो जो नहीं आने वाले बैंक एंटिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क वेटेड एसेट। गॉट इट? दिस इज क्लियर। अब ये कह रहा है कि बैंक का जो टोटल कैपिटल है, कैपिटल मतलब ओवरऑल जो जितना इन्वेस्टमेंट है बैंक में, सीड कैपिटल जो है बैंक का, अभी बताया था ना बैंक का जो सीड कैपिटल
जो 1 करोड़ रुपए अपन ने देखा था, 50 लाख मेरे पास है, 50 लाख मैंने मार्केट से उठाए और 1 करोड़ रुपए में क्या स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की, बैंक स्टार्ट किया। तो ये जो टोटल 1 करोड़ रुपया है, ये बैंक का क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि आप ये चेक करो कि बैंक का जो कैपिटल है ओवरऑल, वो कैपिटल इस रिस्क वेटेड जो एसेट्स है उनके कंपेरिजन में कितना है, उनके परसेंटेज में कितना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमिनेटर में क्या लिया, जो अंश है मेरा, अंश ऊपर वाला पार्ट, उस अंश में न्यूमिनेटर में मैंने क्या लिया, टोटल कैपिटल लिया बैंक का, डिवाइडेड बाय मैंने हर में क्या लिया, डिनोमिनेटर में मैंने लिया रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, इन दोनों को लिया मैंने, तो टोटल कैपिटल ऊपर डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको शॉर्ट में कहते हैं CAR। गॉट इट, यहां तक ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि आपका जो टोटल कैपिटल है जो आपका न्यूमिनेटर में, वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टोटल कैपिटल ज्यादा रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर, मतलब बैंक अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या चीज है, रिस्क वेटेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिकॉज रिस्क जितनी कम रहे उतना अच्छा है। गॉट इट, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। सो दैट इज योर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये कितना होना चाहिए इंटरनेशनल डोमेन में, वो बताता है बेसल नॉर्म्स। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पता चल गया ना क्या होता है। अब चलते हैं आगे। अभी ठीक है, यूनुस, यूनुस ने पूछा था, यस सर, थैंक यू। समझ में आया अभी? जी सर। ओके, तो अब यहाँ देखो, पर्पस इज टू एस्टेब्लिश दैट बैंक्स हैव इनफ कैपिटल ऑन रिजर्व टू हैंडल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस। अब मेरी बात सुनो, अभी हमने देखा कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, टोटल कैपिटल आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रिस्क वेटेड एसेट आ रहा है। अब अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा अच्छा है, कैपिटल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपके जो लॉसेस हो रहे होंगे, उस लॉसेस को आप क्या कर लोगे, उस कैपिटल के थ्रू क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, लॉसेस को कैपिटल के थ्रू कवर कर लोगे। बट अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके कैपिटल से वो ज्यादा कवर हो नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सारा कैपिटल थोड़ी लगा दो भैया, थोड़ा सा कैपिटल आप उसमें से यूज करोगे, दैट वुड बी ओके। ज्यादा कैपिटल यूज करोगे तो सस्टेन कैसे करोगे। तो अगर अच्छा खासा कैपिटल आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस पूरे सिस्टम को क्या करवा दोगे, सर्वाइव करवा दोगे। अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। यही वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्पस इज टू एस्टेब्लिश दैट बैंक्स हैव इनफ कैपिटल ऑन रिजर्व टू हैंडल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस। अगर एक अमाउंट तो लॉस होगा तो बैंक अपने कैपिटल से क्या कर लेगा, उसको कवर अप कर लेगा। बिफोर बीइंग एट रिस्क फॉर बिकमिंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंक भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली। क्यों हो सकते हैं, अगर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनका बैंकिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बैंक ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, प्रॉफिट तो दूर की बात है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं हो पा रही, ऑपरेट नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टर्स को दोगे क्या, कुछ नहीं दे पाओगे, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिलेगा नहीं, तो बिकमिंग इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी से बचना है तो आपके पास एक अच्छा क्रेडिट, अच्छा कैपिटल बफर होना चाहिए। गॉट इट। CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मेजर्स अ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बाय यूजिंग इट्स कैपिटल एंड एसेट्स। मतलब अगर आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको देख के पता लग जाता है, हर बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देख के पता लग जाता है कि उस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। गॉट इट। अब ये कम ज्यादा कितना होना चाहिए वो आगे आ रहे हैं अगली स्लाइड। ठीक है, CAR समझ आ गया ना सबको, एक बार सब एक साथ बताओ, रेस्पॉन्ड करो। जिसको CAR समझ नहीं आएगा तो आगे बेसल नॉर्म समझ में नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ग्रेट, चलो CAR आ गया, इसका मतलब बेसल नॉर्म समझ में आ गया आपको। तो अगर CAR आपका अच्छा है तो आपकी बैंक की स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। यूज टू प्रमोट दी स्टेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अगर CAR ठीक चल रहा है, जो इंटरनेशनल बेसल नॉर्म्स बता रहे हैं उस रेंज में चल रहा है, इसका मतलब आपका बैंकिंग सिस्टम क्या है, हेल्दी स्टेट में। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट। ये अभी यही तो डिस्कस कर रहे थे अपन, डिवाइडिंग अ बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट। ओके, इसको देखो, CAR इक्वल्स टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। देखो ये तो मुझे पता चल गया कि ऊपर
न्यूमिनेटर में मेरे को क्या लेना है, न्यूमिनेटर में मुझे टोटल कैपिटल लेना है। तो मैंने टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, ये टीयर 1 टीयर 2 क्या होते बता रहा हूँ। तो टोटल कैपिटल मैंने न्यूमिनेटर में लेना है, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लेना है, रिस्क वेटेड एसेट टोटल। रिस्क वेटेड एसेट कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने सुना देखा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये सीआर का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्रीलिम्स में पॉसिबिलिटी है कि या तो डायरेक्ट पूछेगा या कुछ ना कुछ इसका क्या करेगा, घुमा फिरा के वो इस फॉर्मूले पे आएगा। टीयर 1 टीयर 2 ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो सीआर का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, वो हो गया आपका सीआर। अब टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, कैपिटल दो तरीके का होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना वाटर टाइट जाना नहीं है अपने को कि टीयर 1 कैपिटल में क्या आ रहा है, टीयर 2 कैपिटल में क्या आ रहा है, नहीं जाना है उतना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ जेनेरिक थिंग, व्हाट इज टीयर 1 एंड टीयर 1 कैपिटल होता है आपका कोर कैपिटल। कोर कैपिटल मतलब आपका इक्विटी कैपिटल। क्या होता है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल क्या होता है कि अब ये इक्विटी मार्केट अभी पढ़ाया नहीं, अभी शेयर मार्केट, ये लास्ट दो तीन स्लाइड हो रहे हैं, उसके बाद अपन आ रहे हैं शेयर मार्केट में। तो होता क्या है ना, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो या तो आप शेयर होल्डर बन सकते हो। जब आप शेयर होल्डर बन जाते हो उस कंपनी के, इसका मतलब आपने उस कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। शार्क टैंक इंडिया देखा है, शार्क टैंक देखते हो? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, अश्नीर ग्रोवर को जानते हो? यस सर। यस सर। अश्नीर को सब जानते होंगे, है ना? अश्नीर तो मीम मटेरियल है ना। मीम्स Yes, में sir. देखा होगा। ये सब दोगलापन है, हाँ। तो अश्नीर आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में कि जब कोई कोई अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने आता है तो वो बोलता है कि आप मेरे कंपनी की 5% इक्विटी में दे रहा हूँ 10 करोड़ में, ऐसा वो प्रपोज करते हैं ना। इक्विटी वर्ड सुना होगा आपने वहां पे। वो जो इक्विटी Yes, वर्ड sir. है वो एग्जैक्टली है कि वो कंपनी में आपको शेयर होल्डिंग दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, शेयर होल्डिंग दे रहा है। तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। और जितने जितने परसेंट आप शेयर होल्डिंग करते हो उसी हिसाब से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको आपकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल। मतलब आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप इक्विटी कैपिटल में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो जो बैंक है, या अपन बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक का टीयर 1 कैपिटल क्या होगा, कोर कैपिटल मतलब सबसे मेन कैपिटल, उसका इक्विटी कैपिटल। इक्विटी मतलब जो उसके शेयर होल्डिंग में जिन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उस वाले कैपिटल की बात कर रहे हैं। यूज्ड टू एब्जॉर्ब लॉसेस, मतलब अगर लॉसेस इनकर हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बैंक को, तो सबसे पहले उस इक्विटी वाले कैपिटल को क्या करोगे आप, यूज करोगे। जो शेयर होल्डर है उनकी इक्विटी को यूज करोगे। ये कैसे हो रहा है, ये अभी शेयर मार्केट थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले 10-15 मिनट बाद, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इक्विटी वाले कैपिटल को आप लॉसेस के टाइम सबसे पहले यूज कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है वो अल्टीमेटली उस कंपनी का क्या हो जाता है, एक तरीके से ओनर हो जाता है। प्रोपराइटर या ओनर बोलते हैं उसको, ठीक है। आप अगर जैसे मैं रिलायंस में शेयर होल्डर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं रिलायंस का क्या हुए, प्रमोटर हूँ, प्रोपराइटर हूँ, ठीक है। और इनडायरेक्टली ओनर भी कहा जाता है, ठीक है। आपकी ओनरशिप होती नहीं है, ओनरशिप तो वही है जो 50% से प्लस शेयर लेके बैठा है, बट एक शेयर होल्डर को कंपनी का ओनर ही कहा जाता है, ठीक है। प्रमोटर कहा जाता है, आप प्रमोटर हो कंपनी के। तो जो प्रमोटर लोग होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट किए होते हैं, तो अगर इन केस वो कंपनी कभी भी डूबती है या कंपनी लिक्विडेट हो रही है किसी सरफेसी एक्ट में या किसी में भी, आईबीसी वगैरह में, इंसॉल्वेंसी के बाद, तो ऐसे केसेस में जो इक्विटी होल्डर होते हैं उन इक्विटी होल्डर को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दी जाती है। किस किस चीज के लिए, अगर कुछ बच जाता है और कुछ और आपको मिलने वाला है आपके शेयर्स के हिसाब से, ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी वालों को। और जो अदर इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अदर किसी फॉर्म में इन्वेस्ट किया होता है उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है, डेट वालों को पहले प्रायोरिटी मिलती है। अभी ये सब उसमें देखेंगे शेयर्स में, अभी ज्यादा मत उसमें कंफ्यूज होना, ठीक है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप डेट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। इक्विटी डेट क्या होते हैं सिक्योरिटी मार्केट में पढ़ने वाले। यहाँ आप ये समझो कि कंपनी के दो कैपिटल हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 कैपिटल में उसका इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल मतलब वो पर्सन जो कंपनी के शेयर होल्डर है, और जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनका जो पैसा है वो टीयर 1 कैपिटल है। और अगर किसी केस में कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाती है, अगर बैंक भी बैंकरप्ट हो गया, बैंक के पास भी पैसा नहीं है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गई है, एसेट्स कम है,
ऐसे केस में बैंक भी क्या हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेशन के केस में लॉस, लिक्विडेशन के केस में सबसे लास्ट क्लेम जिसका रहता है वो इक्विटी वालों का रहेगा। और यहाँ पे ये कि यूज टू एब्जॉर्ब लॉसेस, क्या लिखा है, यूज टू एब्जॉर्ब लॉसेस, मतलब कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, बैंक को अगर लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले जो कैपिटल यूज करोगे आप उस लॉस को कवर करने के लिए, कैपिटल तो यूज करना है, यही तो पढ़ रहे हैं हम, कैपिटल तो यूज करना है लॉसेस को कवर करने के लिए, प्रोविजनिंग में भी करोगे। तो लॉसेस कवर करने के लिए जो कैपिटल यूज होगा वो आपका टीयर 1 कैपिटल होता है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो टीयर 1 कैपिटल इज द कोर कैपिटल विच you should use when there is a you want to absorb the losses, when you want to absorb the losses. Okay, now come to tier 2 capital. I'm telling you, don't go very deep, just try to understand the concept. Tier 2 capital is unaudited reserve. Unaudited reserve means it's just a term, unaudited reserve. Don't go into banking system and all that. Unaudited reserve means the capital other than the equity capital. Simply understand, the capital which is not equity capital will be considered as tier 2 capital. Got it? इतना सा समझ लो, that is debt capital हो सकता है, वो डिबेंचर वगैरह में आ सकता है, वो हम सिक्योरिटी मार्केट में देखेंगे। बट जो इक्विटी कैपिटल नहीं है, that will automatically become the tier 2 capital. Okay, which be unaudited reserve, that is considered unaudited reserve. So which is not tier 1 capital will be tier 2 capital, and which is not equity capital will automatically become the tier 2 capital. Used in event of winding up liquidation. Liquidation means losses absorb करने तो tier 1 capital, और winding up liquidation के टाइम वो tier 2 capital जो है वो उस समय क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। वाइंडिंग अप हो रहा है तो फिर उस समय वो जो अदर जो आपके होल्डर्स होंगे डिवेंचर डेट वालों को, उनको कंसिडर करके फिर उसकी वाइंडिंग अप का प्रोसेस होगा। ओके, सो टीयर 1 टीयर 2 की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। टीयर 1 इज योर इक्विटी कैपिटल एंड टीयर 2 इज योर capital which is not equity, which is not equity capital. That is tier 1, tier 2. So that is the total capital, tier 1 and tier 2. So capital adequacy ratio is nothing but the total capital of the bank divided by the risk weighted asset. Risk weighted asset we have already discussed. And total capital is nothing but the tier 1 capital plus tier 2 capital. So equity capital and the non-equity capital both will be the tier 1 and tier 2. That will be your numerator, and denominator will be the risk weighted asset. Got it? That is capital adequacy ratio for you. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. Sir, used in event of winding up liquidation. Yes. वो नहीं समझा। Wait. This you will understand in security market. Okay. We are going to start security market after 15 to 20 minutes. Okay. Just understand that when the liquidation happened, then the tier 2 capital, like those people who have invested in debt and debenture, will get their money back and try to cover the losses on the other hand. Okay, ये एक just have patience. Okay, have a little patience. Don't worry. In security market, you will get to know what is this, why this is happening here. Okay, so just here to try to understand what is tier 1 and what is tier 2. Tier 1 is equity capital and tier 2 is the unaudited reserve, that is a capital which is not equity capital. Okay. Yes, sir. Good. Now, a bank with high CAR is considered safe. Now, this is the prime thing which you need to understand, because here is the concept. The capital adequacy ratio is the total capital. In numerator, what we have total capital divided by the risk weighted asset. Okay, just use your common sense. We need more capital for the bank. It means our numerator should be more. Numerator should be more means CR will be high, because here we have direct proportion. Means total capital will be more, then CR will be high. Okay, and if there is a more capital, then there will be more CR. And here we have inversely proportional, means risk weighted asset should be low. If risk weighted asset should be low, then CR will be high. Means a high CAR is a healthy condition. A high CAR is a healthy condition. Means capital adequacy ratio should be high. Means a bank with high CAR is considered safe.
If a bank have high CAR, it means bank have enough capital in its account. On the other hand, it have relatively less risk-weighted asset. Got it? Did you get my point? A bank with Yes, sir. very good. Please respond. Yes, sir. Yes, sir. गर्ल्स आगे हैं, Yes, sir. बॉयज पीछे हैं. बॉयज की आवाज ही नहीं आती. हम सुनते हैं. अच्छा. बॉयज सुनते हैं. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है. ओके. ठीक है. तो अ बैंक विथ हाई सीआर बॉयज सुनते हैं? मुझे तो लगता नहीं बॉयज सुनते हैं. तो अ बैंक विथ हाई सीआर इज कंसिडर्ड सेफ. ओके, this everybody would be okay with this. Okay, high CR is considered safe and likely to meet its obligation because risk weighted asset कम रहेगा, कैपिटल ज्यादा रहेगा, तो इजीली लॉसेस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, हेल्दी कंडीशन में रहेगा. वेरी सिंपल. नाउ अकॉर्डिंग टू बेसल 3 नॉर्म्स रिक्वायर्ड CAR इज 10.5. तो अभी 3 बेसल नॉर्म्स आ चुके हैं, अभी हमने एक भी नहीं पढ़ा, बट अभी एक लाइन ये पढ़ लो कि अकॉर्डिंग टू बेसल 3 नॉर्म्स required CAR is 10.5%. Basel 3 norms ये कह रहे हैं कि each and every bank in this global economy in the world should manage their capital adequacy ratio to the 10.5. If CAR is more than 10.5, that's good condition. If your CAR is below 10.5, it means you might have an inefficient banking. आपका एनपीए कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं हो रहा है और आपका बैंकिंग ऑपरेशन फ्यूचर में क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. यू गेट माय पॉइंट. तो हाई सीआर भी अच्छा होता है, तो एक मिनिमम सीएआर बताया गया है 10.5 बेसल 3 नॉर्म्स में. कि 10.5 आप रखो तो आपका बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चलेगा. अगर 10.5 से कम रखोगे तो आपकी रिस्क ज्यादा है. ठीक है, आप अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करो. अगर वो 10.5 से ऊपर है, इट मींस आप अच्छी कंडीशन में हो, और 10.5 से नीचे है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रहे हो. और 10.5 से नीचे में अगर बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब आप बहुत प्रोन हो बैंकरप्सी के, बैंकरप्सी के प्रोन. ठीक है, कहीं ना कहीं आप दिवालिये हो जाओगे, जो कि नहीं होना है. समझ रहे हो? देख रहे हो विनोद, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10.5 होना चाहिए. ठीक है. विनोद को पूछा मैंने और यूनुस ने बोला हाँ. सॉरी सर, लगा कि यूनुस. That's okay. Okay, so Basel 3 norms required this. One more thing, the leverage ratio. Leverage ratio is one more ratio which we need to understand. It's very simple, बहुत simple, तुच्छ है, बहुत तुच्छ है. Leverage ratio में क्या होता है कि एक कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस कहीं ना कहीं से पैसा क्या होता है, लेकर आता है, उधार पे लेकर आता है बिजनेस करने के लिए. तो जो पैसा वो उधार पे लाता है, उसी को कहते हैं बैंक का लिवरेज. क्या कहते हैं? लिवरेज. ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन समझो. It look at how much capital comes in forms of debt. Comes in form of debt. मतलब आपने मार्केट से पैसा उठाया है. मार्केट से पैसा उठाने के 2 तरीके होते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लो 50 लाख रुपए मेरे पास है. 50 लाख रुपए मुझे और चाहिए 1 करोड़ का बिजनेस शुरू करना. मैंने क्या किया, वो 50 लाख रुपए मैंने मार्केट से उठाने हैं. मैंने क्या किया, उस 50 में से 25 लाख के मैंने निकाल दिए शेयर्स. मैंने बोला कि 25 लाख के शेयर निकाल रहा हूं और इसको आप क्या करो, सब्सक्राइब करो. 25 लाख के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लोग आए, लोगों ने सब्सक्राइब किया और 25 लाख रुपए मिल गए. ठीक है, 25 लाख रुपए मिल गए, तो शेयर्स की फॉर्म से 25 लाख रुपए मिल गए. अभी 25 लाख रुपए और आपको क्या करने, उठाने मार्केट से. तो आपने बोला कि मैं इनको इक्विटी में नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको इक्विटी से नहीं उठवा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेट में उठाऊं. डेट में कैसे उठवाते हैं? डेट में ये होता है कि 25 लाख रुपए के लिए लोग आते हैं, 25 लाख रुपए देते हैं और 25 लाख रुपए का एक बॉन्ड ले जाते हैं. क्या ले जाते हैं? एक बॉन्ड. वो बॉन्ड ये कहता है कि इसकी 4 साल मैच्योरिटी है, 5 साल मैच्योरिटी, ये एक मैच्योरिटी का टाइम पीरियड आ जाता है, या कई बार मैच्योरिटी बहुत लॉन्ग टर्म होती है. ठीक है,
वो पैसा जो होता है वो लोग दे देते हैं और वो बॉन्ड ले जाते हैं। उस बॉन्ड में लिखा होता है कि आपको एक 4-5-6% इंटरेस्ट जो है वो पर एनम मिलेगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट उसमें मेंशन रहता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कंपनी के पास वो फिक्स डिपॉजिट रहता है और कंपनी उस पर क्या करती है, इंटरेस्ट देती रहती है। यू गेट माय पॉइंट? तो ये जो पैसा कंपनी ने उठाया है डेट की फॉर्म में, उसको कहते हैं कंपनी का लिवरेज। क्या कहते हैं? लिवरेज। द डेट कैपिटल ऑफ कंपनी इज कंसिडर्ड एज द leverage. The debt capital of the company is considered as the leverage. Okay, wait for a moment. ओके, आवाज आ रही है फिर से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज इज वेरी सिंपल। अभी समझ में आया? डेट कैपिटल समझ में आया क्या है? अभी एक्चुअली ये सिक्योरिटी मार्केट नहीं पढ़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा डाउट होगा। बाकी अभी सिक्योरिटी मार्केट अभी पढ़ने वाले हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जितना पैसा कोई कंपनी मार्केट से उठाती है डेट की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में नहीं, डेट की फॉर्म में। इक्विटी में क्या होता है ना कि आप शेयर होल्डर बन जाते हो। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो किसी में, तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो। बट अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप शेयर होल्डर नहीं हो, आप सिर्फ एक क्या हो, क्रेडिटर हो। आपने सिर्फ उस कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी आपको हर महीने या जो भी एक फिक्स रिटर्न है वो देती रहती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। समझ गए? दैट इज कॉल्ड डेट कैपिटल। तो लिवरेज क्या होता है? इट लुक एट हाउ मच कैपिटल कम्स इन फॉर्म ऑफ डेट, लोन की फॉर्म में कितना, और असेसेस द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने का मतलब है कि अगर आपका एक सर्टेन कैपिटल जो है वो डेट की फॉर्म में आ रहा है, तो जो डेट वाला पोर्शन है ना, सबसे पहले आप उनको पैसा देते हो जब भी आपको प्रॉफिट बनता है। ये सिक्योरिटी मार्केट में ही समझ में आएगा आपको। बस थोड़ा सा ये समझो कि आप डेट से भी पैसा उठा सकते हो, आप इक्विटी से भी उठा सकते हो। इक्विटी में पैसा उठाते हो तो जहां से पैसा, जिसने पैसा दिया है वो शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का। और डेट में जब पैसा आता है वो कुछ नहीं बनता, वो सिर्फ क्रेडिटर है, उसने सिर्फ कंपनी में पैसा डाला है और उसको एक फिक्स रिटर्न मिलना है। फिक्स रिटर्न मिलना है चाहे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा कंपनी को। बट इक्विटी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा और लॉस होगा तो लॉस के लिए भी तैयार रहो, बिकॉज आप शेयर होल्डर हो। डेट में क्या होता है, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ आपने कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी बुरा कर रही है। नॉट इट? तो कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगी ना कि उस डेट वाले को टाइम पे आप क्या चुकाओ, इंटरेस्ट चुकाओ, और जब वो पैसा रिटर्न देने का समय आए तो आप रिटर्न भी दो। तो कंपनी की कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, उनको अच्छे से वो तभी निभा पाती है, वो डिपेंड करता है उसके लिवरेज पे, उसके लिवरेज पे। गॉट इट? ये लिवरेज जो टर्म है वो बैंकिंग स्पेसिफिक टर्म लिवरेज है, एक लिवरेज अलग टर्म होता है, ये बैंक स्पेसिफिक लिवरेज है। ठीक है, तो जितना कैपिटल डेट की फॉर्म में आ रहा है उसको कहते हैं कंपनी का लिवरेज। सो इन लास्ट लाइन देखो, इन कॉमन टर्म्स लिवरेज इज डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर वाला नहीं, डेट वाला। जितना पैसा कंपनी डेट के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में क्या कर रही है, ले रही है बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज द डेट कैपिटल ऑफ कंपनी। व्हाट इट? लिवरेज समझ में आया? और अगर नहीं आया है तो नो वरीज, सिक्योरिटी मार्केट में आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. यस अब सर। देखो ये लाइन पढ़ो, कंपनीज रिलाई ऑन अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए इक्विटी और डेट दोनों पे डिपेंड रहती है। मतलब पैसा इक्विटी से भी चैनलाइज करती है और डेट से भी लेती है। गॉट इट? तो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट लेती है और डेट में भी लेती है। इक्विटी में शेयर होल्डर बन जाएगा अगला, और डेट में उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा टाइम पे। And knowing the amount of debt held by a company is useful in evaluating whether it yes सर लीवरेज और एक बार बोलिए ना प्लीज। देखो लिवरेज बहुत सिंपल है। लिवरेज में क्या है ना, कंपनी को पैसा उठाना है मार्केट से पैसा कंपनी दो तरीके से उठा सकती है। या तो वो शेयर्स अपने रिलीज करे और लोग शेयर्स में पैसा लगाए, तो वो लोग शेयर होल्डर हो जाते हैं जिन्होंने पैसा लगाया, और जो पैसा जिसको मिला वो कंपनी उस पैसे को क्या करती है, यूज करती है। अब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट का डिविडेंड जाता है,
उनके शेयर्स के हिसाब से, जितना प्रपोर्शन है शेयर का उस हिसाब से प्रॉफिट का क्या जाएगा, डिविडेंड जाएगा। और लॉस होगा तो लॉस के लिए भी उनको तैयार रहना है, क्योंकि वो शेयर होल्डर है कंपनी के। ठीक है, पहला जब शेयर से उन्होंने पैसा उठाया कंपनी ने। सेकंड, उनके पास ऑप्शन होता है डेट से पैसा उठाना। डेट से पैसा उठाने का क्या मतलब है कि कंपनी ने क्या कर लिया, क्या बोला कि ये मेरा बॉन्ड है एक, इस बॉन्ड को मैं रिलीज कर रहा हूँ, इस बॉन्ड में लिखा है 1 लाख रुपए, इस बॉन्ड की मेच्योरिटी 5 साल है और इस बॉन्ड में आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। 3 चीजें मेंशन है, कितना कितने का बॉन्ड है वो मेंशन है, 5 लाख रुपए मेंशन है। सेकंड है कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8% वो मेंशन है, और कितने टाइम की मेच्योरिटी है, 5 साल मेच्योरिटी, 5 साल मेंशन है। ये तीनों चीजें मेंशन होती है और ये बॉन्ड होता है। ठीक है, इस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, शेयर होल्डिंग में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। शेयर होल्डिंग में बस आप शेयर होल्डर बन रहे थे कंपनी के, तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस कमाएगी तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। डेट वाले में आपने एक बॉन्ड दे दिया है, डेट वाले में आपने उस सामने वाले को क्या दे दिया, बॉन्ड दे दिया, और उससे क्या ले गया, 1 लाख रुपए का बॉन्ड दे दिया, 1 लाख रुपए ले लिया। अब क्योंकि 8% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो वो जो डेट जिसने वो खरीदा है डेट वाला बॉन्ड, उसको आपको हर महीने 8% क्या करना है, इंटरेस्ट देते रहना है, हर 8% इंटरेस्ट देते रहना है। गॉट इट। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा कर रही है, इससे उस जो जिसने वो बॉन्ड जिसने लिया है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस फिक्स एक इंटरेस्ट रेट मिलना है हर महीने। व्हाट माय पॉइंट, इसको कहते हैं डेट। ये वाला जो कैपिटल इस चैनल से आ रहा है ना, जिसमें बॉन्ड दे रही है कंपनी, उसको कहते हैं डेट चैनल। ठीक है, तो जितना पैसा डेट से ले रहा है कंपनी उसको कहते हैं उसका लिवरेज। ठीक है, तो जितना कैपिटल डेट से आता है उसको कहते हैं उस कंपनी का लिवरेज। व्हाट इट, लास्ट लाइन पढ़ो इस स्लाइड की। इन कॉमन टर्म्स लिवरेज इज डेट कैपिटल ऑफ कंपनी। या तो इक्विटी से आएगा या डेट से आएगा। तो इक्विटी में शेयर होल्डर बनेंगे, डेट में आप बॉन्ड दोगे, तो डेट वाला जितना पैसा आ रहा है उसको कहते हैं कंपनी का लिवरेज, डेट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आया समझ में? हाँ सर। सर कंपनी का नॉर्मली जो होता है इक्विटी से ही ज्यादा आता है ना? हाँ, इक्विटी Like- से भी लेते हैं और दोनों से लेते हैं, डेट से भी, वो दोनों का मिक्स लेते हैं। ठीक है, इक्विटी से भी अच्छा। लेते हैं और इससे भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन सर कोई मतलब ज्यादा होता है या फिर कोई कम, ये ऐसा कुछ है क्या कि ऐसा कुछ कोई नहीं है, भी? वो मिक्स, वो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अच्छा। अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो कंपनी अगर शेयर्स उतारेगी मार्केट में, तो डेफिनेटली शेयर्स की क्या रहेगी, वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी शेयर्स की वैल्यू? बिकॉज मार्केट अच्छा चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो वो शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो मार्केट में क्या रहेगी, बढ़ने लगेगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट लो चल रहा होगा, लो चल रहा होगा तो शेयर्स मिल नहीं रहे, मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हो सकता है कंपनी लॉस में भी चली जाए। तो ऐसे केस में डेट वालों को क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, बिकॉज उनको क्या है, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा 8%। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट की कंडीशन पे, जिस समय कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है उस समय मार्केट कहाँ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे शेयर्स रिलीज कर दोगे और मार्केट सही नहीं चल रहा है तो आपके शेयर सब्सक्राइब ही नहीं होंगे, लोग खरीदेंगे ही नहीं। समझ गए? तो मार्केट की कंडीशन को देख के एक पूरा उनका पूरा एक बिजनेस डिसीजन बहुत एनालिटिक्स के साथ लिया जाता है कि शेयर्स कहाँ से कितना पैसा आएगा। ठीक है, डेट से कितना लेना है, इससे कितना लेना है, उन सब की एनालिटिक्स होती है। उनको कंपनी को जब पता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, उसकी एक क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग है प्रॉपर, कि मैं अगले 3-4 साल में बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, तो वो कोशिश करता है कि मेरा शेयर्स का जो रहे मामला वो कितना रहे, डेट का कितना रहे, उसकी लिमिट कितनी रहे। डेट में तो प्रॉपरली उसको पता है कि 8% अगर मैं इंटरेस्ट देने वाला हूँ मेरे बॉन्ड पे, इसका मतलब वो तो देना ही है मुझे, 8% तो देना ही है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी, पहले खुद सोचेगी कि हाँ कम से कम मैं 16 से 20% अपना प्रॉफिट बनाऊंगा, तब ना मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा, उसके बाद भी पैसा कमा लूंगा। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक पूरी कैलकुलेशन के साथ डिसाइड होता है कि आपको शेयर से पैसा उठाना है या डेट से पैसा उठाना है। व्हाट इट, और ये डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पे। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कभी हो सकता है डेट से ज्यादा उठाए, कभी हो सकता है इक्विटी से ज्यादा उठाए। यूजुअली इक्विटी की बात होती है। ठीक है, इक्विटी से पैसा आता है, इक्विटी रिलीज होती है, अभी देखते हैं इक्विटी वगैरह कैसे रिलीज होती है। ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। हो, अब देखो बेसल 1 दिख रहा है। तो ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो हमने देखी थी, जो 1974 में बनी थी, उस बेसल कमेटी ने पहली बार जो अपने बेसल नॉर्म्स निकाले थे वो बेसल 1 नॉर्म्स है। कब निकले थे? 1984
8 में। तो बेसल 1 was released in 1988. It focused almost entirely on credit risk. Credit risk मतलब उनका जो पूरा फोकस था वो सिर्फ किस पे था? एनपीए पे था। क्रेडिट रिस्क मतलब वही पैसा डूब रहा है उस पे था, क्रेडिट रिस्क पे था। Credit risk is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligation. बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं निभा पा रहा, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा या फिर प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा या फिर वो पे ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? क्रेडिट रिस्क। ठीक है। ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू द रिस्क दैट अ लेंडर मे नॉट रिसीव द ओल्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, अगर वो उसको लेंडर जो है उसको या तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं आता, एनपीए बन रहा है वो कुल मिला के, और कुछ नहीं। इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेड फॉर द बैंक। ठीक है, इसने क्या किया? कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेड। तो रिस्क वेटेड का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो इन्होंने बेसल 1 में ही लेके आए। तो बेसल 1 में रिस्क वेटेड का कॉन्सेप्ट आ गया था। बेसल 1 ऑब्सक्यूर हो गया है, आउटडेटेड है, ठीक है, बट स्टिल इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें रिलीज हुआ था। तो रिस्क वेटेड का कॉन्सेप्ट ये लेकर आ गए थे उसी समय। ठीक है। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। मतलब जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो कितना था? बेसल 1 में 8% था। याद रखना, बेसल 1 1988, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी 8%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर का कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कब? बेसल 1 नॉर्म्स पे। सॉरी, ये नॉर्म्स रिलीज हुए, ये नॉर्म सिर्फ रिलीज हुए, जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज ने इनको अडॉप्ट कर लिया। कंट्रीज को ये एक गाइडलाइन मिल गई कि आपको अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना रखना है? 8 रखना है। 8 से ज्यादा रखते हो तो अच्छी बात है, बट 8 से कम नहीं जाना है, बिकॉज ज्यादा पे अच्छा है, कम में दिक्कत है। इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 गाइडलाइन इन 1999। तो 88 में रिलीज हुआ, उसके 11 साल बाद इंडिया ने क्या किया? बेसल 1 गाइडलाइन को क्या किया? अडॉप्ट किया। आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ओके, इफ यू फाइंड एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन ऐड, अदरवाइज इतना बहुत है। ठीक है, 88 में रिलीज हुआ, इस पे फोकस था, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना था? 8% था। गॉट इट? इंडिया अडॉप्टेड बेसल 1 इन 1999। नाउ बेसल 2। बेसल 2 नॉर्म्स इन 2004। 88 के बाद करीब करीब कितने? 16 इयर्स बाद ये 2004 में बेसल 2 गाइडलाइन पर पब्लिश्ड बाय बीसीबीएस। बीसीबीएस मींस Basel Committee on Banking Supervision. These were the refined and reformed version of Basel 1. तो Basel 1 के refined और reformed version थे, मतलब उसके अंदर कुछ इस पूरे ड्यूरेशन में, इन 12, 13, 15 सालों में जो भी मार्केट में चेंजेस आए, इंडिया, क्योंकि इंडिया भी ओपन हो गया था तब तक, एलपीजी हो गया था 1991 में, उसके बाद कई एशियन टाइगर्स की इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। ठीक है, तो ये जो कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए ग्लोबल इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं उनसे जो बेसल 1 नॉर्म्स थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। तो ये नए नॉर्म्स लेकर आ गए बेसल 2। तो रिफाइंड एंड रिफॉर्म्ड वर्जन थे बेसल 1 के। द गाइडलाइन वर बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। इन्होंने कुछ पैरामीटर और ऐड किए, इसमें तो यही था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल 2 में क्या लाए थे? 3 पैरामीटर। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट पहले से थी। सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू मतलब बैंक्स को कैसे सुपरवाइज करना है एक सेंट्रल बैंक को, इसकी रिव्यू के लिए वो क्या ले आए? कुछ एसओपी टाइप की चीज लाए। मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन मतलब कि बैलेंस शीट जो है, जो ट्विन बैलेंस शीट का इशू आता है, ट्विन बैलेंस शीट इशू हम पढ़ेंगे क्या होता है। ट्विन बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है। ट्विन मतलब दो लोगों की बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है। कैसे? एक तो इंडस्ट्री की बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है, बिकॉज एनपीए, सबसे पहले बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ाती है क्योंकि बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, एनपीए बढ़ता है, बैलेंस शीट गड़बड़ाई। सिमिलरली इंडस्ट्री जो कि रीपे नहीं कर पा रही, उसका भी बैलेंस शीट क्या है? गड़बड़ाया हुआ है। तो दोनों का बैलेंस शीट जो गड़बड़ा जाता है उसको कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। तो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम से क्या होता है? बैंक भी काम नहीं कर पा रहा अच्छे से और वो इंडस्ट्री भी काम नहीं कर पा रही अच्छे से। तो इंडस्ट्री को भी बेल आउट की जरूरत है और बैंक को भी बेल आउट की जरूरत है। ठीक है, दोनों को बेल आउट की जरूरत पड़ रही है ताकि दोनों एक क्या कर पाए? अच्छे से काम कर पाए। बेल आउट मतलब उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालना है। गॉट इट? तो मार्केट डिसिप्लिन वही होता है कि जो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम हो रहा है, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। वो आएगी तो फिर बैंकिंग सिस्टम और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंटरमीडिएट्स का, वो क्या कर पाएगा? इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट एट ऑल गुड। गॉट इट?
तो बेसल 2 में ये 3 चीजें वो लेकर आए। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट तो पहले भी था, सुपरवाइजरी रिव्यू लेकर आए, सुपरविजन कैसे करना है उसका कुछ एसओपी स्टैंडर्ड्स, एंड मार्केट डिसिप्लिन, ये 2 चीज लेकर आए। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेसल नॉर्म्स में अगर आएगा तो, डोंट वरी। ठीक है, बेसल 2 नॉर्म्स हो गए। ये कब आए? 2004 में आए। इन्होंने करीब करीब 8 ही रखा इसको, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब करीब इसमें भी 8 ही था। ठीक है, बेसल 2 norms in India and overseas are yet to be fully implemented through, though India follows these norms. ठीक है, इंडिया कौन से नॉर्म्स फॉलो कर रहा है अभी? करंटली इंडिया इज फॉलोइंग बेसल 2, याद रखना। 2004 में रिलीज हुए थे, करंटली इंडिया इज फॉलोइंग बेसल 2 नॉर्म्स। बेसल 3 नॉर्म्स के लिए इंडिया ने गाइडलाइन निकाली बेसल 3 नॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए, आरबीआई ने निकाला, बट बीच में कोविड का इशू आ गया, उसके बाद से अभी तक वो पोस्टपोन ही होता जा रहा है। अभी तक प्रॉपरली बेसल 3 नॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं किया है इंडिया ने, अभी इंडिया बेसल 2 पे ही चल रहा है। ठीक है, बेसल 3 देखें आप, बेसल 3 कब आया? इन 2010 बेसल 3 गाइडलाइन रिलीज 2010 में आ गई। ये 2004 में आई थी बेसल 2, और बेसल 3 कब आ गई? 2010 में आ गई। अब 10 में कैसे आ गई इतनी जल्दी? क्योंकि बीच में एक हो गया था पंगा। पंगा कौन सा हो गया? 2007-8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, लेमन ब्रदर्स का सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 में, वो आपको मैं समझाऊंगा अलग से डिटेल में कि क्या हुआ था उसमें। तो बेसल 3 गाइडलाइन पर रिलीज कब? 2010 में, क्योंकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, लेमन ब्रदर्स वाली सब प्राइम क्राइसिस। इस वजह से पूरा ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो ब्रोकन हो गया और रिसेशन आ गया था पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। इसीलिए उनको वापस पिक्चर में आना पड़ा, और इससे सीख के, लाइक 2007-8 की क्राइसिस से सीख के उन्होंने कुछ नए स्टैंडर्ड क्या किए, सेट किए। So these a need was felt to further strengthen the system as banks in the developed economies were undercapitalized. Undercapitalized का मतलब था कि उनका कैपिटल जो था वो कंपैरेटिवली जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चल रहा था उसके रिलेटिवली क्या था? कम था, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम था। अंडर कैपिटलाइज थे बैंक, बैंकों को कैपिटल की क्या थी? जरूरत थी। द कैपिटल इन्फ्यूजन वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स इन द डेवलप्ड कंट्री वाज द कंसर्न। ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द डेवलप्ड कंट्री वाज द मेन कंसर्न। ओवर लिवरेज्ड मींस, लिवरेज मतलब डेट कैपिटल, ओवर लिवरेज मींस द डेट कैपिटल वाज वेरी हाई। Debt capital was very high. When debt capital is very high, it means you have to repay that debt na in future. You have to repay that debt because shares के साथ तो ऐसा चक्कर नहीं होता, पर debt के साथ चक्कर होता है, you have to repay. ठीक है, and when you have to repay and even repaying तो है ही, उसके along आपको हमेशा एक interest rate तो देनी पड़ रहा है। तो over leveraging is not good idea. Over leveraging is means you have a high debt, you won't able to maintain your or go with your financial obligation. So over leveraging is not good idea. Leverage जो है वो थोड़ा एक लिमिटेड होना चाहिए। डेट से जब पैसा आप उठा रहे हो तो लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। So under capitalization was one of the issue. Over leverage was second issue and had a greater reliance on the short term funding. Now the problem is that if bank will rely on short term funding, what will happen? Short term funding is very volatile, very liquid. Means short term funding won't give you एक तो रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म फंडिंग पे। सेकंड, इफ यू हैव लॉन्ग टर्म फंडिंग, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन द कैपिटल क्रिएशन। In the capital creation you can invest, and you can also have certainty, like if you have a bond and that you are releasing a bond of 5 lakh rupees and you are receiving 5 lakh rupees after selling that bond. Okay, that 5 lakh rupees you have received and that bond जो चला गया है, इस बॉन्ड की मैच्योरिटी क्या है? 5 साल है। 5 साल अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी है और पैसा आपको मिल गया तो 5 साल तक वो पैसा आपके पास है। लॉन्ग टर्म तक पैसा जब आपके पास रहेगा तो आप उसके लिए प्रॉपर क्या कर सकते हो? प्लानिंग कर सकते हो। बट उस समय क्या हो रहा था, एक तो अंडर कैपिटलाइज थे, अलॉन्ग विद दैट ओवर लिवरेज थे, डेट ज्यादा था, और तीसरा क्या हो रहा था, जो उनका रिलायंस था बैंक का, वो शॉर्ट टर्म फंडिंग पे था। शॉर्ट टर्म फंडिंग में ये हो रहा था कि उनको रिटर्न भी उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे जितने मिलने चाहिए, अलॉन्ग विद दैट जो प्लानिंग थी उनकी, वो प्लानिंग भी उस हिसाब से काम नहीं करी। शॉर्ट टर्म फंडिंग भी एक अलग इशू चल रहा था उनके साथ। ठीक है, तो अंडर कैपिटलाइज, ओवर लिवरेज एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग, उस पर रिलाई कर रहे थे। तो ये 3 बड़े इशू थे कब? 2007-8 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। The guidelines aim to promote a more resilient banking system. More resilient means
रिजिलियंस होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक परसिवरेंस होना चाहिए। परसिवरेंस तो क्या बोलोगे आप, ऐसा कहो कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इस तरह की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो छोटे ये जो इश्यूज हो रहे हैं, इन इश्यूज की वजह से एकदम कोलैप्स वाली कंडीशन में ना आ जाए, तो उसमें रेजिलियंस होना चाहिए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी कम होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो, लेस वल्नरेबल एंड मोर रेजिलियंट। तो ये जो गाइडलाइन आई वो चाहती थी कि बैंकिंग सिस्टम क्या हो, रेजिलियंट बने, मोर रेजिलियंट, बाय फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स। इनका फोकस किस पे था, 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे था। वो पैरामीटर क्या था, पहला था कैपिटल, कैपिटल की जरूरत थी। लिवरेज उनको क्या करना था, कम करना था डेट कैपिटल को, इस कैपिटल को बढ़ाना था ओवरऑल को, टीयर 1 टीयर 2 कैसे भी करके। लिवरेज को क्या करना था, उनको कम करना था डेट कैपिटल को। फंडिंग एंड लिक्विडिटी, फंडिंग और लिक्विडिटी को तो वो मैनेज करना चाह रहे थे, क्योंकि फंडिंग लिक्विडिटी को मैनेज करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें क्या कर पाओगे, बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये 4 चीजों पे उनका क्या था, फोकस था बेसल 3 नॉर्म्स में। The deadline for the implementation of Basel 3 was March 2019 in India. तो इंडिया में आरबीआई ने डेडलाइन बनाई, क्योंकि आरबीआई ही बैंकिंग सुपरविजन देख रहा था। तो आरबीआई ने बोला कि 2019 मार्च तक क्या कर लो आप, डेडलाइन इसको इंप्लीमेंट कर दो बेसल 3 को। It was postponed to March 2020. In light of the pandemic, the RBI decided to defer the implementation of Basel norm by further 6 months. ठीक है, बाद में 6 महीने और बढ़ा दिया, और आई थिंक अभी तक भी इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं है 2022 तक भी बेसल 3 का। तो इंडिया अभी भी बेसल 2 नॉर्म्स पे ही चल रहा है। ठीक है, बेसल 3 पे आएगा तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा, अभी बेसल 3 पे आया नहीं इंडिया। ठीक है, बेसल 3 को फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी है आरबीआई बना चुका है, और उसको मार्केट में लाने की क्या कर रहा है, धीरे धीरे कोशिश भी कर रहा है। रिसेंट करंटली इंडिया बेसल 2 पे चल रहा है, बेसल 3 रिलीज हो चुके हैं, 2010 में हुए हैं। बेसल 3 को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग क्राइसिस जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट द होल वर्ल्ड। The banking system of the whole world is facing crisis. The NPA crisis is a really big crisis. So you might get a question in the mains also. ऑल्दो मेंस में बैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का लीनिंग रहता नहीं है यूपीएससी का, बट स्टिल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी द concern of UPSC, that for a sustained growth and a macroeconomic stability you need a resilient banking system. That resilient banking system is right now not available. Banking system is facing crisis. So to avoid that crisis, what kind of measures are required? You need a generalistic approach in that. आपके पास एक जनरलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए आंसर देने का। तो आपको एक पर्सपेक्टिव बना के चलना है। बेसल नॉर्म्स उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। बैंकिंग को हमने मोर और लेस बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और काफी पढ़ा है बैंकिंग को। बैंकिंग खत्म हो रहा है, अब हम सिक्योरिटी मार्केट में आ रहे हैं, और सिक्योरिटी मार्केट के बाद हम थोड़ा पब्लिक फाइनेंस की तरफ चलेंगे, बजट और उसके बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो मेंस में भी यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, बहुत जनरलिस्टिक क्वेश्चन आएगा मेंस में, कोई ज्यादा एकदम एलोबरेट द बेसल नॉर्म्स एंड वो सारी चीजें नहीं पूछता यूपीएससी। वो सिर्फ ये पूछेगा कि अगर बैंकिंग सिस्टम में रिजिलियंस लाना है, या फिर करंटली एनपीए क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके के मेजर जरूरी हैं, या इसके पीछे क्या हिडन, क्या जो ओवर्ट और कोवर्ट क्या रीजंस हैं। ठीक है, क्या सिनर्जी की जरूरत है, इंटरनेशनल बैंकिंग में क्या इश्यूज हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। ओके, so Basel 3 norms. Wait, no? और ये जो कैपिटल देखो, बेसल 3 नॉर्म्स हो गए। इस बेसल 3 नॉर्म्स में ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बेसल 3 नॉर्म्स रिक्वायर्ड CAR इज 10.5। तो बेसल 3 नॉर्म्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 10.5 है, ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 10.5% इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इज रिक्वायर्ड अंडर द बेसल 3 नॉर्म्स। इंडिया अभी बेसल 2 पे ही चल रहा है, और बेसल 2 में शायद वो 8% है।
इसमें शायद अभी 2.5 बढ़ाया गया उसको। अब इसके अंदर देखो बेसल नॉर्म्स अगर आप किसी बुक वगैरह से उससे पढ़ोगे तो उसमें और भी डिटेल्स है उनकी, कि बहुत सारे रेशियोज बता रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट इतना डिटेल में ना तो यूपीएससी कभी पूछता है, और ना ना तो प्रीलिम्स में और मेंस में तो चांसेस बहुत कम है। प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस रहते हैं, तो प्रीलिम्स में कभी कभार कोई इंडिकेटर या कोई एक आध रेशियो कोई पूछ सकता है, बाकी जितना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उसका कि बहुत ज्यादा आप डिटेल में चले जाओ। ठीक है, मोर और लेस जितना जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतना हो गया है आपका एज फार एज ये स्लाइड्स जो कंसर्न है। ठीक है, तो बेसल 3 में आप ये ध्यान रखना कि जो रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो आपका 10.5% 10.5% है। ये जो इसको बढ़ाया गया है 8 से 10.5 किया, इसका मतलब आप चाह रहे हो कि आपके पास कैपिटल आपका क्या रहे, ज्यादा रहे, और आपका रिस्क वेटेड एसेट्स कम रहे। कैपिटल को आपने क्या किया है, बढ़ाया है। गॉट इट? तो अभी करंटली सीआर कितना होना चाहिए, 10.5। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? यस सर। गुड। अब देखो रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत सिंपल सी बात है। रिकैपिटलाइजेशन का क्या चक्कर है, अगर बैंक्स के पास ये 10.5 कह रहा है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10.5 होना चाहिए, पूरे बैंकिंग सिस्टम का बोल रहे हैं, इंडिविजुअल बैंक का भी होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल बैंक मेंटेन करके चलता है। मैं कह रहा हूं कि मैं पूरी इकोनॉमी का एक एग्रीगेट चेक कर रहा हूँ। ये जो सीए आ रहे हैं ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मैं पूरी इकोनॉमी का चेक कर रहा हूँ। तो टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल सारे बैंक्स का ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय सारे बैंक का रिस्क वेटेड एसेट ले लिया कलेक्टिवली, इंटीग्रेटेड। ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा जो सीएआर आ रहा है वो जो है वो एग्जाम्पल के लिए आ रहा है 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बेसल 3 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए। आ कितना रहा है, 8 आ रहा है। तो बेसल 3 नॉर्म्स को के साथ अगर मुझे कंप्लाई करना है, इसका मतलब मैं 10.5 तो चाहिए, और मैं हूं कितने पे, 2.5 पे, हूं कितने पे, 8 पे। इसका मतलब 2.5 में लैग कर रहा हूँ, 2.5 में क्या कर रहा हूँ, लैग कर रहा हूँ। इसका मतलब 2.5 जो है उतना कैपिटल मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाके मैं क्या होऊंगा, बेसल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि 10.5 तो बेसल 3 नॉर्म कह रहा है, मैं 8 पर ही हूं, तो 2.5 मुझे और कैपिटल चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 2.5 और बढ़ाना है। और उतना बढ़ाने के लिए मेरे पास ऑप्शन रहता है कि या तो मैं रिस्क वेटेड एसेट्स को कम करूं, या फिर मैं अपना कैपिटल क्या करूं, बढ़ाऊं। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये जो 2.5% का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको मैं पूरा कर सकता हूं कब, जब मैं बैंकिंग सिस्टम में कैपिटल को पेनिट्रेट करूं आउटसाइड से। अगर मैं आउटसाइड से कैपिटल पेनिट्रेट करता हूं टीयर 1 और टीयर 2 में, तो मेरा ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो प्रोपोर्शनली सीआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, यस नो बोलो। Yes, sir. ठीक है, मेरे को ये जो 2.5 का डिफरेंस है उसके बराबर आने के लिए मुझे कैपिटल को बढ़ाना है। ठीक है, कैपिटल बढ़ाऊंगा तभी सीआर बढ़ेगा मेरा। ठीक है, तो मैंने जब इंडिया के लिए इस चीज को कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनना, जब मैंने इंडिया के लिए ये कैलकुलेट किया, सारे बैंकों का टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल लिया, डिवाइडेड बाय उनके रिस्क वेटेड एसेट लिए और सीआर निकाला, तो वो करीब करीब कुछ आया, XYZ मान लो 80 आया। ठीक है, और चाहिए 10.5, तो 2.5 का जो डिफरेंस आ रहा था वो 2.5 का सीआर बढ़ाने के लिए मुझे कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैपिटल इन्फ्यूज करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल को इन्फ्यूज करेगी। वो कैपिटल जो इन्फ्यूज करते हैं उसको कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। और क्यों रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर क्योंकि नॉर्म्स मिनिमम है, ये 10.5 तो वो मिनिमम कह रहा है। 10.5 से अगर ज्यादा चलते आप तो आपको रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ओवर कैपिटलाइज होते कि आप अच्छा चल रहे हो। ठीक है, ओवर कैपिटलाइज तो नहीं होते बट आप हेल्दी कंडीशन में होते। बट ये मिनिमम से कम पे चल रहे हो, इसका मतलब
बेसल नॉर्म कह रहा है कि यार इससे कम चल रहे हो, इसका मतलब आप रिस्क पे हो, कम से कम इस पे तो चलो, कम से कम इस पे तो चलो। तो उस पे आप लाने का क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो बैंकों को और कैपिटल की जरूरत है। वो और कैपिटल कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट करती है बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल का पेनिट्रेशन इन द बैंक्स। गॉट इट। ये देखो हेडिंग क्या है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSBs, public sector banks. If a bank doesn't have enough capital to comply with Basel III norms, it can issue debt and equities to gather new capital. तो पहला ऑप्शन तो खुद बैंक के पास ही है, कैपिटल कैसे गैदर कर सकता है, इक्विटी निकाल दो या डेट निकाल दो और कैपिटल गैदर कर लो। कैपिटल गैदर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो फिर गवर्नमेंट को आना पड़ता है। ठीक है। In 2015, government projected that public sector banks will require 1.8 lakh crore, मतलब 1.8 लाख करोड़ का कैपिटल जो है वो लैक कर रहा है। समझ रहे हो, बेसल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने के लिए 1.8 लाख करोड़, इतना कैपिटल क्या है चाहिए किसको, बैंकिंग सिस्टम को, तो जाके वो उसके साथ क्या करेगा, कंप्लाई करेगा। एडिशनल कैपिटल बाय टू कंप्लाई विद बेसल 3 नॉर्म्स, इतना चाहिए। 2019 तक का ये था कि इतना चाहिए था, अभी रिसेंटली वापस चेंज भी हो गया डेटा। Finance Ministry came up with bank recapitalization plan for phased recapitalization of PSB with 70,000 crore from 15 to 18. Individual PSBs will get funding based on outcomes. मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो बेसल 3 नॉर्म्स के साथ तो हमको जाना ही है, तो हम आपका क्या करते हैं, रिकैपिटलाइजेशन करते हैं। अब ये रिकैपिटलाइजेशन का जो पैसा है, वो पैसा गवर्नमेंट भी जो बनाएगी ना, वो किसी न किसी वर्च्यू से बनाएगी। कैसे बनाएगी, वो भी इक्विटी निकाल सकती है, डेट निकाल सकती है, लोन निकाल सकती है, किसी न किसी एक आध इंस्ट्रूमेंट को यूज करके क्या करेगी, बैंक्स को रिकैपिटलाइज करेगी, बॉन्ड निकाल सकती है। ठीक है। इन सब से वो बैंक को रिकैपिटलाइज करके बेसल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करवाएगी। इंटरनेशनल कोई प्रेशर नहीं है आप पे कि आप बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से चलो, कोई कंट्री आप पे जोर नहीं डाल रही, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पे जोर नहीं डाल रहा। पर आपको खुद को ये सेंस होना चाहिए कि बेसल 3 नॉर्म्स बने ही इसीलिए हैं ताकि एक लेवल बता रहे उसके हिसाब से चलेंगे तो हेल्दी सिस्टम में रहेंगे, उससे लोअर जाएंगे तो सिस्टम की हेल्प बिगड़ जाएगी। इसीलिए ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, कंप्लाई करते हो। और अगर आप कंप्लाई करके चलते हो तो आपकी इंटरनेशनल इमेज भी क्या होती है, बेटर होती है। आपके बैंकिंग सिस्टम के प्रति जो फेथ होता है लोगों का और इंटरनेशनल सारे मतलब इकोनॉमीज का, वो क्या होता है, रिस्टोर होता है, अच्छा रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रिकैपिटलाइजेशन प्लान बनाते हैं, आपको कंप्लाई करवाना है उसके साथ। तो 70,000 करोड़ 2015 से 2018 तक रिकैपिटलाइजेशन प्लान में गवर्नमेंट ने डाले। उसमें अभी और भी रिकैपिटलाइजेशन प्लान चल रहा है। ठीक है। 2017 7,000 crore were insufficient for Basel III compliance, so central government announced more than 2 lakh crore recapitalization package. ठीक है। ये 17,000 करोड़ कम थे, बेसल 3 कंप्लाइन करेगा नहीं, बिकॉज 1.8 लाख करोड़ तो पहले ही बता रहा था वो एस्टिमेट में, 17,000 करोड़ से होगा नहीं काम। तो करीब 2 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन पैकेज बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे वो हो रहा था रिकैपिटलाइजेशन, फिर कोविड आ गया और अभी स्थिति थोड़ी हॉल्ट हुई है। रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत तो है। रिकैपिटलाइजेशन समझ आया? Yes, sir. नो डाउट। Yes, sir. No. ग्रेट। एक क्वेश्चन करो जल्दी से। 1 मिनट है आपके पास, पहला क्वेश्चन करो, 1 मिनट है। मेरे को सिक्योरिटी मार्केट स्टार्ट करना है आज। यूपीएससी प्री में आया है 2018 में ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट तो कल ही डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, फर्स्ट वाला कर लिया कल डिस्कस। ओके ओके, हाँ फर्स्ट तो डिस्कस कर लिया था, सेकंड देखो फिर। फर्स्ट तो डिस्कस किया था कल। सेकंड वाला 2016 के प्री में आया था। ठीक है।
एकदम तुच्छ सवाल है ये, तुच्छ। सर अभी डी। सर डी। डी। हाँ, ये तो कॉमन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब उसने बैंकिंग में भी नहीं उलझाया आपको, उसने तो बिल्कुल ही डाइवर्स ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया नेशनल स्टडीज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ही नहीं। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, है ही नहीं। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज टू रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट, है ही नहीं। तीनों ऑप्शन एनवायरमेंट के हैं, और चौथा ऑप्शन है बैंकिंग का। ठीक है, 2016 के प्री में आया, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, तो मतलब पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल से रहते हैं आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड। चले, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। और भी कुछ चीजें आएगी, आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो यू विल केम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स, बट कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आर क्लियर। फैक्चुअल चीजें यू विल गेट अक्रॉस, बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें हम लोग सारी पढ़ ली ऑलमोस्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो कुछ नहीं है। यस सर रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो आप बोले कि मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बस ये कर सकते हैं आरबीआई की, और भी प्रोसीजर्स है? नहीं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। रिकैपिटलाइजेशन के प्रोसीजर बहुत सारे हैं। आप मार्केट से भी मनी उठा सकते हो। ठीक है, मार्केट से मतलब अच्छा। जीसेक, इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि जीसेक से उठाओगे। ठीक है, आप जो जिस जिस पर्टिकुलर बैंक को आप रिकैपिटलाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने ओवरऑल एक अमाउंट बताया ना कि 17,000 करोड़ का मैं रिकैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ, बट उसके अंदर वापस सब कैटेगराइजेशन भी है कि एसबीआई को इतना रिकैपिटलाइजेशन चाहिए, तो एसबीआई के ही आप शेयर्स क्या कर रहे हो, मार्केट में उतार दे रहे हो, बैंक्स के ही शेयर उतार दे रहे हो। ओके। तो इक्विटी उतारोगे तो इक्विटी से आपको कैपिटल मिलेगा ना, है ना। वैसे आप डेट उतारोगे तो डेट से भी आपको मिलेगा पैसा, कहीं ना कहीं आपका कैपिटल तो बिल्ड होगा ना। तो यू यस सर, ओके कैन सर। गो विद सो मेनी ऑप्शंस। और कुछ कोई कह रहे ओके सर। नहीं सर, ओके सर। कुछ और आवाज आ रही है? नहीं सर, बाजू का। अच्छा, बाजू वाले से आवाज आ रही है। ठीक है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो कुछ नहीं होता है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो एक बॉडी है। वो बॉडी क्या करती है कि आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, एसबीआई हो गया, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं पीएनबी हो गया, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके जो चेयरमैन होते हैं, इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो सब होता है, उन सब के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको चूज करने का काम कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, बस और कुछ नहीं। बाकी इसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स है, वो आप खुद से पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो एक ऐसी बॉडी है जो, जैसे एसबीआई के चेयरमैन बनाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का चेयरमैन बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, उसके अंदर के ऑफिसर रहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब बैंक बोर्ड ब्यूरो उसका काम देखता है थोड़ा। गॉट इट? तो दैट्स इट। ओके, सो ये आपका क्या था, बैंकिंग एंड रिलेटेड इश्यूज। ये स्लाइड्स आज शेयर हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। इन पूरी स्लाइड्स को आप अच्छे से पढ़िए, और इसमें अगर आपको कोई भी चीज डाउट हो तो आप पूछ ही लीजिएगा डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है, सब हो गया है इसमें। चलो, अगला स्टार्ट करें सर। से यस। यस सर। से यस। नोबडी सेइंग यस। यस सर। Oh, very nervous yes. Yes, sir. यस सर। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट, फिर कल करेंगे। डाउन सिंपल है सी। यस, क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। बोलो बोलो। स्लाइड्स दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। सो बैंकिंग खत्म हो गया है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे में,
बट हमको सिर्फ थोड़ा सा उसको समझ के चलना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। ठीक है, स्लाइड दिख रही है? यस सर। Yes, sir. देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि सिक्योरिटीज क्या होती है। सिक्योरिटीज बहुत सिंपल सी बात है। सिक्योरिटी क्या होती है कि जब आप बैंक जाते हो, ठीक है, आप पैसे जमा कराते हो, आपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए 5 साल के लिए, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, एफडी करा दी, तो बैंक आपको कागज दे रहा है ना, वो कागज आपकी क्या है, श्योरिटी है कि भाई साहब आपने पैसा जमा कराया। सिमिलरली अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, लैंड कर रहे हो, तो जो पैसा लैंड कर रहे हो, लैंड करने वाला कह रहा है कि हाँ ठीक है आपने मुझे पैसा दिया है, तो वो कागज पे क्या कर दे रहा है, साइन कर दे रहा है। तो सिक्योरिटी वही चीज है। सिक्योरिटी एक कागज का टुकड़ा है जो ये बता रहा है कि हाँ कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। अब जो उसका बियरर है उसके पास कंडीशन लिखी हुई है, उन सारी कंडीशन के हिसाब से वो फ्यूचर में आजकल या कभी भी क्या है, उस बॉन्ड के हिसाब से, उस एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे लेने के लिए क्या है, उसका क्लेम है। वो कभी भी उसका पैसा जो भी मेच्योरिटी पे या जैसे भी बनेगा वो ले सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। डेफिनेशन देखो, अ सिक्योरिटी मीन्स अ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट indicating that its holder is eligible to receive a certain amount of money at a particular time. सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी वो है कि उसका जो होल्डर है, जिसके पास वो है, बियर जिसके पास वो है, इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि उस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, उस बॉन्ड में ये लिखा हुआ है कि इसकी मेच्योरिटी 5 साल है, उस बॉन्ड में ये भी लिखा हुआ है कि इसको इंटरेस्ट मिलेगा 5-6%, 6-7% जो भी इसको मिलना है। मतलब अमाउंट लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है और परसेंटेज इंटरेस्ट रेट भी लिखा हुआ है, ये तीनों लिखा हुआ है। अब ये बॉन्ड पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये बॉन्ड है किसका, उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है, वो सिर्फ बॉन्ड है, बियरर्स बॉन्ड है, मतलब जिसके पास रहेगा उसका हो जाएगा। तो ये जिसके भी पास है वो पर्सन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो उसमें मेंशन है, उसके बाद वो जो पैसा है उसके लिए वो उसका क्लेम है, वो उसके लिए क्या है, एलिजिबल है उस पैसे को रिसीव करने के लिए। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या होती है? एक सर्टिफिकेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंडिकेट कर रहा है दैट इट्स होल्डर, जो उसको होल्ड कर रहा है, इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि टाइम पीरियड भी मेंशन है, प्रिंसिपल भी मेंशन है, दोनों चीजें मेंशन है। दैट इज योर सिक्योरिटी। गॉट इट? दैट इज योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स सुनेंगे सिक्योरिटीज के लिए। ठीक है, इसमें वो समझेंगे कि बहुत सारी सिक्योरिटी क्या क्या होती है। When any business entity wants to raise money, जब किसी बिजनेस एंटिटी को पैसा रेज करना होता है, टू स्टार्ट और टू एक्सपांड देयर बिजनेस। टू स्टार्ट, या तो स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस जीरो पे खड़ा है, या फिर वो ऑलरेडी है और एक्सपांड करने वाला है। ठीक है, तो अगर वो जीरो पे खड़ा है और स्टार्ट करने वाला है, इसका मतलब वो है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। क्या है? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड का मतलब है वो जीरो पे है और स्टार्ट करने वाला है। और अगर वो ऑलरेडी स्टेब्लिश है और उसको एक्सपांड करने वाला है, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड। क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड। मतलब ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है बस अब उसको एक्सपांड करने वाला है। तो आप जीरो पे खड़े हो तब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो और एक्सपांशन के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो यू वांट टू रेज मनी टू स्टार्ट और टू एक्सपांड देयर बिजनेस, देन दे हैव टू ऑप्शंस। देयर आर टू ऑप्शंस टू रेज द मनी। व्हाट आर टू ऑप्शंस? फर्स्ट इज द इक्विटी। फर्स्ट इज द इक्विटी। पहला ऑप्शन है कि आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो। सो व्हेन यू रेज मनी फ्रॉम द इक्विटी, यू विल इशू द शेयर सर्टिफिकेट। मींस इक्विटी आपने निकाली, तो इक्विटी से जब पैसा कोई इन्वेस्ट करेगा तो दे विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये हम अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। ठीक है, शेयर होल्डर बन जाएगा वो कंपनी के। सिमिलरली अगर आप डेट से पैसा बनाओगे तो अगले को आप क्या दोगे? बॉन्ड दोगे या डिबेंचर दोगे? बॉन्ड और डिबेंचर की डिबेट में नहीं जाना है। बॉन्ड नॉर्मली यूएसए में यूज होता है, नहीं, बॉन्ड नॉर्मली ब्रिटिश या यूरोप में यूज होता है, डिबेंचर यूएसए में यूज होता है। दोनों का मतलब करीब करीब डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड और डिबेंचर है, इक्विटी शेयर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो आप इक्विटी से पैसा निकाल सकते हो, उठा सकते हो, या फिर आप डेट से उठाओगे। डेट क्या होता है हमने देखा था, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगी उसको, सामने वाले को। ठीक है, उसमें कोई उससे मतलब नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इक्विटी को देखें पहले। इक्विटी में क्या हो रहा है? इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब आप क्योंकि शेयर होल्डर हो तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो आपके शेयर होल्डिंग की प्रोपोर्शन में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट डिविडेंड। आपको लाभ का अंश मिलेगा, एक वन पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, डिविडेंड।
ओके, डिविडेंड इज द लाभांश, लाभ का एक अंश, ओके, आपकी प्रोपोर्शन के हिसाब से। इफ नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड, अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो शेयर होल्डर को तभी फायदा है जब कंपनी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो बाबूजी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड। जो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसको कहते हैं प्रमोटर या प्रोपराइटर ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के क्या हो जाते हो, प्रमोटर हो जाते हो, बिकॉज डेफिनेटली आप प्रमोट करोगे। मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं तो मैं प्रमोट करूंगा रिलायंस को कि यार रिलायंस का प्रोडक्ट यूज हो, बिकॉज उसका प्रोडक्ट ज्यादा यूज होगा तो डेफिनेटली मुझे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर हो फिर भी हो तो सही, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं क्या होते हो, उसके प्रमोटर या प्रोपराइटर होते हो। लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, शेयर होल्डर का लास्ट क्लेम होता है ड्यूरिंग लिक्विडेशन। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपका जो क्लेम होता है वो लास्ट होता है। मतलब कैसे, अगर कंपनी है और आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो कंपनी क्या हो गई, डूब गई किसी वजह से। जब डूब गई कंपनी तो आपका जो पैसा आपने कंपनी में लगाया, अब लिक्विडेशन कौन करेगा, या तो सरफेसी में होगा लिक्विडेशन या फिर आईबीसी में होगा। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्लान बनाएगा और वो लिक्विडेशन होगा उसका। तो लिक्विडेशन के बाद जो पैसा थोड़ा बहुत बचेगा, थोड़ा बहुत आएगा, उसको मिलेगा लैंडर्स को देने के बाद, क्योंकि लैंडर्स को दे दिया उसके बाद भी पैसा बचा, तो वो जो पैसा बचा हुआ रहेगा थोड़ा बहुत, वो फिर देगा उसके शेयर होल्डर्स। किसको देगा, शेयर होल्डर्स को। तो जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग होगी उसको उतना पैसा वापस देने की कोशिश करें। बट शेयर होल्डर्स से पहले वो पैसा उन लोगों को देगा जिन्होंने डेट में इन्वेस्ट कर रखा है। मतलब कंपनी में जिन्होंने डेट में इन्वेस्ट कर रखा है उनको पैसा पहले मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इसीलिए शेयर होल्डर्स का जो लिक्विडेशन के टाइम क्लेम होता है वो सबसे लास्ट होता है, याद रखना। इसीलिए देखा, हैव लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर्स का जो क्लेम होता है वो सबसे लास्ट होता है। एंड में कुछ बचेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के टाइम भी उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है। अट्रैक्टिव इन बूम पीरियड, बूम पीरियड मतलब जब पीरियड बहुत अच्छा चल रहा होता है, बूम चल रहा होता है, इकोनॉमी बहुत क्विकली जा रही होती है। क्विकली जा रही है इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब लोग चाहेंगे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगर आप डेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगी 8%, चाहे मार्केट बहुत बूम पे चल रहा हो। तो जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहता है बूम पीरियड में, तो शेयर्स की में इन्वेस्टमेंट करने का रुझान लोगों को क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रेंड जो होता है शेयर में रुझान करने का ज्यादा हो जाता है। दैट इज योर इक्विटी पार्ट। तो इक्विटी से आप पैसा उठाते हो तो आपके साथ ये कंडीशन लगती है। डेट में आओ, डेट में क्या है, होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। भाई साहब डेट से अगर पैसा उठाया है तो जो डेट होल्डर है, जो जिसके पास बॉन्ड है, उसको फिक्स है कि भाई 8% इंटरेस्ट मिल रही है। अब कंपनी पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, प्रॉफिट में लॉस में, उस डेटर को, उस जो डेट होल्डर है, जो बॉन्ड होल्डर है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपना 8% इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो वो मूवी याद है ना, कौन सी मूवी थी, एक हेरा फेरी मूवी थी ना। हेरा फेरी मूवी में जो तोतला सेट होता है, मेरा 20 लाख रुपया मुझे दे दो, तो उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब वो राजू श्याम और बाबू बिहार के पास पैसा है या नहीं है, या उनका बिजनेस डूबा या कैसे पैसा कमा रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरा 20 लाख रुपया मुझे दे दो। वैसे ही है जो डिवेंचर और बॉन्ड होल्डर होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट हमें दे दो, बाकी तुम्हारी कंपनी जैसे चल रही है वैसे चलाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गॉट इट, दैट इज बॉन्ड एंड डिवेंचर। नाउ next is they are called creditors of the company. Those people who invested in equity are called the promoters or proprietors, and those who are investing in bond and debenture are considered creditor. Creditor because उन्होंने सिर्फ पैसा दिया है, ठीक है, उनका कोई पार्ट नहीं है मैनेजमेंट में, किसी में कोई रोल नहीं है उनका, ठीक है, वो क्रेडिटर है कंपनी के, पैसा देके छोड़ दिया उन्होंने, उनको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। फर्स्ट क्लेम मतलब लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, इनका फर्स्ट क्लेम मतलब अगर कंपनी डूबी और उसका लिक्विडेशन हुआ तो पहले लैंडर्स को दे दिया, लैंडर्स को देने के बाद अब फर्स्ट क्लेम किसका रहेगा, उन लोगों का रहेगा जिन्होंने डेट में इन्वेस्ट करके रखा है। व्हाट इट, अभी बताया था, डेट वालों को पहले क्या देंगे, लिक्विडेशन जो भी कर रहा है, आईपी कर रहा है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल या नेशनल कंपनी लेटर जो भी कर रहा है, वो क्या करेगा, पहले इन लोगों को क्या करेगा, पैसा देगा, उसके बाद शेयर होल्डर वालों को देगा, इक्विटी वालों को, ठीक है। तो फर्स्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन होता है किसका, बॉन्ड और डिबेंचर वालों का। व्हाट इट, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड एंड डिबेंचर। बट और ये कब इसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर कब ये प्रमोट होगा, या फिर कब इसकी मतलब डिमांड बढ़ेगी, जब मार्केट क्या चल रहा होगा, स्लो डाउन में चल रहा होगा। क्योंकि स्लो डाउन में चल रहा होगा तो कंपनी डूब रही होगी, पैसा नहीं कमा रही होगी, पैसा नहीं कमा रही बट हमको तो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बॉन्ड और डिबेंचर में लोग इन्वेस्ट तब करना चाहते हैं जब मार्केट चल रहा होता है स्लो।
और मार्केट जब हाई चल रहा होता है तो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज प्रॉफिट मिलेगा. गॉट इट? सो दिस इज द इक्विटी एंड द डेट. बाय बोथ द वर्चूज एनी कंपनी कैन रेज द मनी. गॉट इट? इक्विटी डिबेंचर क्लियर हो गया? इक्विटी और डेट. Yes, sir. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. और पढ़ना है? If you will say yes, we'll go forward. No, sir. Very good. सर No, आज sir. के लिए इतना ही. No. No, sir. No, sir. Lack of enthusiasm. What is this? Where is your perseverance? Show something. सब एक साथ ना, मतलब एकदम इक्विवोकली सारे लोग बोले नो सर. आई एम वेटिंग फॉर द Yes, मोमेंट sir. व्हेन इसमें भी मतलब यस सर भी एकदम साथ ही बोल रहे हैं. चलो ठीक है, अच्छा है. ओके, तो समझ आज आया ना ये जो बैंकिंग और रिलेटेड इश्यू वाला जो हैंड आउट है, पीपीटी है, वो अभी ड्राइव में अपलोड हो जाएगा. ठीक है, ड्राइव में कुछ कुछ कंटेंट है जो सिस्टमेटिक नहीं है, पहले अपलोड हो गया था, तो मैं उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दूंगा लेक्चर वाइज. सो यू विल बी एबल टू डू दैट, मतलब उसके लिए उससे आपको अच्छा रहेगा. ठीक है, और उसमें एक अलग फोल्डर भी Sir, बनाएंगे. sir, यस. हेलो सर. बेसल 3 में जो एक सेंटेंस था अंडर कैपिटलाइज्ड, वो समझ नहीं है सर थोड़ा. अंडर कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है? अंडर कैपिटलाइज का मतलब वही है कि अगर आप बेसल के नॉर्म्स के हिसाब से आपका कैपिटल नहीं जा रहा है तो आप अंडर कैपिटलाइज हो, करीब करीब. नहीं समझे? बेसल नॉर्म्स कह रहा है कि 10.5% आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए. वो कब होगा? जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल होगा, न्यूमिनेटर में टीयर 1 टीयर 2, और डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड एसेट भी है. रिस्क वेटेड एसेट को एक बार साइड में रखो, पर आप देखो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल को. आपका अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो सही नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल मिलके उस रेशियो को अचीव नहीं कर पा रहा. इसका मतलब आप क्या हो? अंडर कैपिटलाइज हो. आपका रिकैपिटलाइजेशन होगा, आपको कैपिटल मिलेगा. when you will get adequate capital, then you will come on the level of the Basel 3. That is the under capitalization. ओके सर, थैंक यू. Okay, okay then, good luck. एंड ये मिल जाएगा, इसको आप रिवाइज करना सारे लोग. ठीक है, Thank you, sir. Good night. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर.